Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be continuing with the series on Indian economy for the upcoming UPSC CSE examination. In this video, we'll be covering budget, taxation, subsidies, disinvestment, deficit, and public finance. So, first of all, we'll look at fiscal policy, its meaning and relevance. So, the government uses fiscal policy to regulate savings, investment, consumption, and thus aiming to achieve income redistribution, socio-economic welfare, economic development, and inclusive growth. ठीक है, तो कुछ नहीं है. Fiscal policy is primarily the policy which is made by the Ministry of Finance, and it is aimed at these four goals primarily. ठीक है, तो income redistribution के equality should be maintained, socio-economic welfare of all the people, overall economic development of the country, and inclusive growth. ठीक है, this is not very important from the exam point of view, but you just should know, you should have a general understanding of what it means. ठीक है, next we'll be looking at budget. So budget का basic जो definition है वो है कि it is an annual financial statement of estimated government revenue and expenditure. ठीक है, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू ओवरऑल कितना गवर्नमेंट अर्न कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एंड इट्स एक्सपेंडिचर, उसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा एंड दैट विल बी नोन एज द बजट. ठीक है, नाउ पर्पस क्या है? इट इज़ अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री. ठीक है, नाउ देर आर प्राइमरीली थ्री की फंड्स व्हेन इट कम्स टू द बजट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, then we have public account of India, and thirdly we have the contingency fund of India. Okay, so now we will be beginning with the consolidated fund of India. Consolidated fund of India किस में दिया है? It is mentioned in article 266 of the Indian Constitution. Similarly, public account of India is mentioned again in article 266, and the contingency fund of India is mentioned in article 267. ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे? वी नीड टू रिमेंबर द आर्टिकल नंबर्स. सो देखो, थ्री की फंड्स हैं इंडिया में, है ना. सो टू आप ऐसे ही लर्न कर लेना. टू देन इनटू द थ्री की फंड्स विल गिव अस 6 एंड राइट 6 अगेन. ठीक है, तो 266 हो गया. ठीक है, सिमिलरली पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का भी 266 है, एंड द नेक्स्ट वन इज 267, एंड दैट इज द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आर्टिकल जैसे लर्न हो गया. नाउ वी लुक एट अब उसके अंदर का कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है. इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द गवर्नमेंट रेवेन्यू. ठीक है, वो सारा कुछ इट गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड एनी विड्रॉल फ्रॉम दिस फंड विल रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल. ठीक है, एक्सेप्ट द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा everything which the government earns, all of the government revenue will be going to the consolidated fund of India. So how does the government earn? Via taxes and loans. ठीक है, then जो उसका अगर if you want to withdraw, if the government wants to withdraw money from this consolidated fund of India, it will have to take parliament's permission. ठीक है, however charged expenditure जो होता है, अगर आपको याद होगा तो चार्ज एक्सपेंडिचर किस किस का होता है. फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज सैलरी एंड अलाउंसेस, ऑल ऑफ these come under charge expenditure. So charge expenditure will not be put up for vote in the parliament. ठीक है, तो यहाँ लिख लेती हूँ, not put up for vote. In the parliament. ठीक है, देन वी लुक एट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. सो उसमें क्या होगा, जो हमारे गवर्नमेंट के देर आर वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम्स. सो फॉर एग्जांपल देर आर स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर वुमेन,
है ना, गर्ल चाइल्ड के लिए रहता है। देन वी आल्सो हैव प्रोविडेंट फंड, है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं, all of these go to the public account of India. So whenever the government is acting as a banker, the money accrued from that will be going to the public account of India. ठीक है, so funds like provident fund, small saving schemes, all of these. ठीक है, so when government acts as a banker, that amount of fund will be going to public account of India, and the withdrawal will not require parliament's permission, क्योंकि जो इसमें पैसा है दैट इज़ द पीपल्स मनी, है ना, क्योंकि उनका ही है। प्रोविडेंट फंड किसी भी इंडिविजुअल का रहेगा, सिमिलरली स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी किसी और इंडिविजुअल की रहेगी। सो इट विल नॉट बी रिक्वायरिंग एनी parliamentary approval for removing the withdrawal, will not require any parliamentary approval, ठीक है। Then creating a new fund within the, हाँ देखो, what happens is that sometimes the government creates a fund within the public account of India for certain specific purposes, ठीक है। However, if it creates such a fund, that will require parliamentary permission, ठीक है। तो अगर कोई भी न्यू फंड बनाना है विद इन द पब्लिक अकाउंट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, दैट विल रिक्वायर पार्लियामेंट्स परमिशन, ठीक है। नाउ वी लुक एट द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कम्स अंडर आर्टिकल 267। इसमें एज द नेम सजेस्ट्स इट इज़ फॉर सम कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है ये, ठीक है। सो फॉर एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स एज वेल, इट इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरीज, ठीक है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि फाइनेंस सेक्रेटरी इज़ द वन हु विल बी मैनेजिंग द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, and the parliamentary approval is obtained after the expenditure has been done. Why? Because कोई भी emergency situation में इस पैसे को यूज़ करना है, ठीक है। सो इफ़ द पार्लियामेंट starts approving it before it is being used, then it will waste a lot of time, ठीक है। तो एक बार यूज़ कर लेते हैं, then parliamentary approval is acquired, ठीक है। एंड जितना भी मनी इज़ यूज फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इट इज़ रीफिल्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ वी लुक एट बजट रिफॉर्म्स। सो बजट 2021 में देयर वाज अ स्लाइट रिफॉर्म। द कंटिजेंसी फंड was increased from rupees 500 crore to 30,000 crore. So why was this done? Primarily due to the COVID pandemic, ठीक है। वहाँ पे कोविड आ गया था उस टाइम पे, and government was in need of a lot of contingency funds, and so that is why the quantum of the fund was increased from around 500 crores to 30,000 crores, ठीक है। सो कितना हो गया, 60 टाइम्स बढ़ा दिया। 60 टाइम्स भी नहीं, कितना, 600 टाइम्स आई थिंक। सिक्स 600 इंटू 500 कितना हो जाएगा, 30, 1 2 3 4, नहीं 60 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है ना। 60 टाइम्स द फंड वॉज इंक्रीज्ड। सो आई हैव टोल्ड यू दिस फॉर हेल्पिंग यू टू लर्न द न्यू फिगर। तो पहले 500 करोड़ था, अभी 30,000 करोड़ है। एलोकेशन कितना है, 40% ऑफ दिस फंड is given to the Department of Expenditure and 60% to the Department of Economic Affairs, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उसके पास ओनली 40% इज एलोकेटेड, whereas the Department of Economic Affairs will be having 60% of the fund, ठीक है। सो दिस सीम्स क्वाइट आयरॉनिकल, क्योंकि हमें लगता है कि एक्सपेंडिचर खर्चा करने वालों के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, है ना। बट नहीं, 40% इज़ फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, 60% विल बी विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। नाउ वील बी लुकिंग एट सम डोनेशन फंड्स। सो क्या क्या है, वी हैव PMNRF एंड PM केयर्स, ठीक है। सो PM केयर्स तो अभी पता होगा आपको,
was in use during COVID-19, है ना? So PMNRF stands for Prime Minister's National Relief Fund. ठीक है? So I'll just write it down here. Prime Minister's, yeah, National Relief Fund. ठीक है? And PM Cares stands for Prime Minister. Wait a second. Citizens Assistance and and relief in emergency situations fund. ठीक है? सो PM NRF है और PM केयर्स है. ठीक है? बोथ ऑफ देम आर डोनेशन फंड्स, है ना? Now we'll be looking at the each of the funds. So first of all, PMNRF में क्या है, पर्पस क्या है? It was originally for refugees, however now it is being used for disasters and medical aid. ठीक है? तो रेफ्यूजीज़ कब आए थे? 1947 में, आफ्टर पार्टीशन देयर वाज अ लॉट ऑफ माइग्रेशन, है ना? इंटर कंट्री माइग्रेशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, एंड दिस फंड वाज प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड फॉर रेफ्यूजीज देमसेल्व्स. ठीक है? कब बनाया? वही 1947 के नेक्स्ट ईयर 1948 में दिस वाज मेड. देन originally for refugees and it is now being used for other purposes. Setup क्या है? Was neither established by parliament and it relies primarily upon donations by citizens. ठीक है? तो कोई भी budgetary support नहीं है इसके लिए. ठीक है? So neither the parliament is putting money into it nor is it having any budgetary support. It is primarily reliant on donations from citizens. या तो फॉरेन कंट्री से भी डोनेशंस से भी चलता है. ठीक है? टैक्स बेनिफिट्स क्या है? इफ़ समवन डोनेट्स मनी इनटू दिस देन टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है. ठीक है? उस पैसे को. एंड कंपनीज कैन डोनेट इन दिस इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़. ठीक है? ये आपको पता होगा टर्म, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है? GS4 वगैरह में है ये, है ना? सो any donation which is made by a company in this will count towards corporate social responsibility. Next है, it is operated by the Prime Minister's office. ठीक है? Again this is also very important and Prime Minister happens to be the ex officio chairman of the same fund. ठीक है? So operated by PM's office. So that is all for Prime Minister's National Relief Fund. Now we'll be looking at Prime Minister's PM Cares, that is Prime Minister's Citizens Assistance and Relief in Emergency Situations Fund. ठीक है? तो this is primarily used in emergency situations like COVID-19. So it was also मतलब it was built in during COVID-19. तो 2020 में it came into force, है ना? And बाकी it is the setup as well as the tax benefits, it is the same as those provided under PMNRF. ठीक है? So that is why there was a lot of criticism for this scheme कि there's already a scheme known as PMNRF and why is the government constructing this fund? PM cares क्यों बना रहा है when there's already one available. ठीक है? Moreover there was a lot of controversy surrounding this क्योंकि PM cares में जो भी पैसे जा रहे थे
दैट वाज नॉट ब्रॉट अंडर आरटीआई। आरटीआई के अंडर नहीं लेके आए उसको। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हुला बुलू के इसका मिसयूज हो रहा है फंड का। ठीक है, सो गवर्नमेंट टिल द गवर्नमेंट हैज टिल डेट नॉट ब्रॉट दिस अंडर आरटीआई। ठीक है, सो दिस रिमेन्स कंट्रोवर्शियल, और इसका देयर इज़ नो एज सच प्रॉपर डिटेल्स गिवन कि कहाँ पे पैसे यूज़ हो रहे हैं। जस्ट द सिटीजन्स आर डोनेटिंग मनी इनटू दिस एंड द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्मिंग कि वेयर इज इट बीइंग यूज्ड। ठीक है, so again the prime minister is the chairman for this fund. PM cares has various ex officio trustees as well. For example, defense minister, home minister, finance minister, and three other nominated trustees as well. ठीक है, so again this is an important fact कि यहाँ पे PM will be the chairman and there will be certain ex officio trustees. So जो बहुत important ministries हैं हमारे country की, finance ministry, home ministry and the defense ministry, all of their ministers are the ex officio trustees, and apart from these there will be three other nominated trustees as well. ठीक है, now we look at national defense fund. So this was created in 1962, है ना, and it is primarily for military and paramilitary families. ठीक है, तो 1962 61 62 में चाइना इंडिया इंडो चाइना वॉर हुआ था, दैट इज़ व्हेन दिस वाज क्रिएटेड। ठीक है, इंडो चाइना वॉर, उसके टाइम पे इट वाज क्रिएटेड, एंड ऊपर जैसा ही है, अगेन डोनेशन फंड है एंड इट इज़ प्राइमरली फॉर मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फैमिलीज। कंट्रोवर्सी क्या है वही, there are concerns about the transparency and accountabilities of these funds. ठीक है, and there are calls about bringing them under the public account of India or consolidated fund. However, they have been refusing to bring this government has refused to bring this under RTI, thus leading to a court case. ठीक है, so this is a blatant disregard of democracy. देखो क्या हो रहा है, donations are being made by citizens only, गवर्नमेंट नहीं दे रहा है ना, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द सिटीजन्स, एंड आप इनको ही बता नहीं रहे हो कि पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, इनको यू आर नॉट टेलिंग, दे आर द वंस हु आर पेइंग मनी इन दिस, दे आर द वंस हु आर पुटिंग मनी इन दिस, और इनको पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं हमारे पैसे। ठीक है, तो दिस इज़ very unconstitutional, and that is why there is a court case which has been made. Or there was a lot of fund which was donated under PM cares, and there is no मतलब accountability कि कहाँ गया वो सारा पैसा। ठीक है, so that is why a court case has been made and there is a lot of controversies surrounding this। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Three documents related to the budget. So budget is basically a French word, बुजेट, बुजेट से इसको बना है ना। बुजेट का मतलब होता है लेदर बैग। ठीक है, बही, ठीक है, और इसको बही खाता भी बोलते हैं। बही खाता का मीनिंग होता है लेजर अकाउंट। ठीक है, क्योंकि बजट में क्या है, इट इज़ एसेंशियली द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ द रेवेन्यू एज वेल एज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज द बही खाता। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड से इसको डिराइव करा है बिकॉज पहले क्या करते थे, बजट को एक बैग में लेके आते थे। ठीक है, हाउएवर अभी क्या करते हैं, एक रेड क्लॉथ का एक लेजर होता है। यू माइट हैव सीन प्राइम मिनिस्टर, आई एम सॉरी, द फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन होल्डिंग इट। ठीक है, रेड कलर का एक रहता है, स्मॉल बैग टाइप चीज़ रहती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द बही खाता।
एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ प्रेजेंटेड नॉर्मली। पहले एक ब्रीफ केस में लाते थे फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है। सो दिस इंटायर थिंग इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस चीज़ में लेके आना उसको, ठीक है। नाउ देखते हैं कि बजटरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। देर आर 3 documents रिलेटेड टू द बजट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड उसका दिया रहेगा, revenues and expenditure of the government, ठीक है। सो इट विल बी शोइंग द past year's income or expenses and projections also for the next year, ठीक है। then we'll be having the finance bill आएगा, that will be seeking parliament's approvals for टैक्स प्रपोजल्स। तो फाइनेंस बिल में क्या रहते हैं, प्राइमरीली टैक्स प्रपोजल्स रहते हैं गवर्नमेंट के, कि यहाँ पे टैक्स लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव दी अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल में क्या होगा, इट विल बी सीकिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू स्पेंड मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट करने, फंड्स अप्रोप्रिएट करना कंसोलिडेटेड फंड में से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू रिमेंबर द आर्टिकल नंबर्स फॉर ईच ऑफ दीज, ठीक है। सो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 112, ठीक है। तो इनको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, देखो आर्टिकल 112 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सो सबसे पहले ये दिस इज रिगार्डिंग द बजट, है ना। तो बजट में क्या रहेगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस डन, ठीक है। तो 1+1 = 2, ये ऐसे बेसिक चीज़ें रहेंगी उसमें। और रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वैसे करके आप लोन कर लो कि 1+1 2 ऐसे करके देयर विल बी सर्टन बेसिक कैलकुलेशंस इन द बजट, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में दिया है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंस बिल, तो उसका 117 लर्न करना है ना हमें। सो फाइनेंस बिल में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल है ना। बिल में कितने, 2 L है, सो दिस लुक सिमिलर टू 1 and 1, ठीक है। फिर फाइनेंस बिल है ये, फाइनेंस का जो F है, F लुक सिमिलर टू इन्वर्टेड 7, है ना। तो वैसे हो जाएगा 117, ठीक है। ये हो गया फाइनेंस बिल। देन वी आर लुकिंग एट अप्रोप्रिएशन बिल, तो इसमें अगेन वैसे ही देख लेंगे। बिल में LL 1 1 की जैसे लगता है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट ए लुक्स सिमिलर टू 4, ठीक है। तो 114 विल बी द अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो ये तीनों लर्न हो गए। अभी विल लुक एट, वो तो वैसे आपको याद हो गया होगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मिलता है ना कि इनकम कितनी हुआ है, एक्सपेंसेस कितना हुआ है, वो है ये, ठीक है। और मैंने ये 112 से भी आपको लर्न करा दिया था कि वही बेसिक कैलकुलेशन है कि इनकम कितनी आ रही है, एक्सपेंस कितना हो रहा है, ठीक है। देन फाइनेंस बिल में क्या दिया है, टैक्स प्रपोजल्स। तो देखो इसको वैसे भी लर्न कर लो आप, 117 तो हो ही गया था, है ना। जो F है वो थोड़ा सा T जैसे दिखता है, T का आधा, इवन 7 लुक्स लाइक हाफ ऑफ T, ठीक है। तो T से क्या होता है, टैक्स प्रपोजल्स, ठीक है। तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर दैट फाइनेंस बिल में क्या दिया रहेगा, टैक्स प्रपोजल्स दिए रहेंगे। देन अप्रोप्रिएशन बिल का तो जो वर्ड है, द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। अप्रोप्रिएट करना मतलब कम बड़ा, कम करना, ज़्यादा करना, ये सब चीज़। अप्रोप्रिएट का मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग है वही फिट करना, ठीक है। सो हाँ, ठीक है, अप्रोप्रिएटिंग मनी फ्रॉम द फंड्स, ठीक है। सो वही आप उसके लिए यूज़ कर लो कि अप्रोप्रिएट करना, जैसे कि स्पेंडिंग मनी और कुछ भी, डीलिंग विद द फंड, मैनेजिंग द फंड समहाउ, ठीक है।
तो स्पेंडिंग मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विल रिक्वायर अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, नाउ वी विल बी लुकिंग एट द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल में क्या रहेगा, फाइनेंस बिल में द पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश द प्रपोज्ड टैक्सेस बट इट कैन नॉट इंक्रीज देम। ठीक है, फाइनेंस बिल वॉज रिगार्डिंग टैक्स प्रपोजल्स, है ना। सो जितना भी द गवर्नमेंट हैज़ कम अप, दे हैव क्रिएटेड सर्टन डॉक्यूमेंट्स एंड टैक्स प्रपोजल्स, सो पार्लियामेंट कैन आइदर रिड्यूस देम और अबॉलिश देम, पर ऐसे नहीं है कि इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, जितना भी गवर्नमेंट ने डिटरमाइन करा है कि इतना टैक्स प्रपोज कर रहे हैं हम लोग, इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, इट कैन ओनली बी रिड्यूस्ड और अबॉलिश्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट द अप्रोप्रिएशन बिल। सो अप्रोप्रिएशन बिल में one second. So sorry for the background noise, that was my dog. So okay, now we'll look at appropriation bill. Appropriation bill में क्या होगा, वही it will be regarding पार्लियामेंट्स अप्रूवल टू स्पेंड मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। सो इसमें वही जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरीज एक्सेट्रा, दे आर नॉट वोटेबल फॉर बाय द पार्लियामेंट। सो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दिस अबाउ ओनली, है ना। एंड अदर एक्सपेंडिचर्स आर वोटेड अपॉन। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट मनी बिल्स। सो मनी बिल क्या रहेगा, both the finance bill as well as the appropriation bill, है ना। these two are also are kinds of money bills only। ठीक है, both the finance bill as well as the appropriation bill are types of money bill, है ना। and Rajya Sabha's approval is not required when it comes to पासिंग दीज बिल, क्योंकि मनी बिल का ये रहता है, व्हेन यू रीड दिस इन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में दिया है कि मनी बिल में क्या रहेगा, लोकसभा अप्रूवल इज मेन, राज्यसभा में तो इट विल गो फॉर 14 days और सो, एंड इवन इफ इट इज़ नॉट अप्रूव्ड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी पास्ड। ठीक है, तो राज्यसभा अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस, है ना। एंड लोकसभा स्पीकर्स डिसीजन ऑन वेदर अ मनी बिल इज़ whether a bill is a money bill is final, ये तो आपको पता होगा, ये सब पॉलिटी में दिया है। ठीक है, द ओनली थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट जब बजट के जो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से 2 of them are money bills, that is the finance bill is regarding the tax proposals and appropriation bill is regarding spending money from the consolidated fund of India। ठीक है, सो बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी, है ना, तो इसलिए दे आर कंसिडर्ड टू बी मनी बिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये सब तो दिस इज दीज 3 थिंग्स, दीज आर पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी ओनली। आपको पता होगा कि क्या करते हैं, सिंस द स्पीकर्स डिसीजन इज फाइनल ऑन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि दे विल प्रपोज एनी ऑर्डिनरी बिल रहेगा, कोई भी मनी के ज़्यादा उसका कुछ काम नहीं रहेगा मनी बिल जैसा, बट दे विल इंट्रोड्यूस इट एज अ मनी बिल। ठीक है, ताकि राज्यसभा स्क्रूटिनी इज पास्ड, बिकॉज राज्यसभा वोंट बी एबल टू, मतलब इवन इफ दे वोट अपॉन इट, their approval or disapproval will not affect the implementation of that bill, है ना। so that is why the government does such tactics, they resort to such tactics। ठीक है, so again that is not a very good constitutional practice। ठीक है, नेक्स्ट है 6 stages of passing a budget in the parliament। so जो इंडिया का जो बजट प्रोसेस है, इट हैज़ प्राइमरीली गॉट 6 key stages। सो वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रेजेंटेशन, देन जनरल डिस्कशन, डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी, वोटिंग, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। ठीक है, देखो 6 stages का जो फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रेजेंटेशन। सो
फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। सो ये काफ़ी इट इज़ वेल टेलीवाइज्ड ऑल्सो, है ना, टेलीविज़न पे, न्यूज़ चैनल्स पे इट इज़ प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड, ठीक है। तो द बजट एड्रेस, है ना, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। देन आफ्टर दैट देयर कम्स द जनरल डिस्कशन। इसमें द एमपीज विल बी डिबेटिंग द बजट्स ओवरऑल पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ओवरऑल जनरल डिस्कशन रहेगा, दिस विल बी ब्रॉड बेस्ड, ठीक है। then the budget will go for departmental scrutiny. So parliamentary committees of different departments will examine the budget proposals for specific ministries and departments, ठीक है। This will be a detailed scrutiny unlike general discussion wherein overall ऊपर ऊपर से देखते हैं। Then we have voting. Voting में क्या होगा, MPs will be voting on the demand for grants, that is the allocation to the ministries. Cut may motions may be proposed to reduce or eliminate the spending also, ठीक है। And if time runs out, a guillotine motion is applied, thus and the remaining demands are voted on together. तो क्या होगा, जो कट मोशन रहेगा उसमें प्राइमरली क्या रहेगा कि either to reduce the amount of spending or eliminate spending altogether, ठीक है। और ना गिलोटीन का भी पता होना चाहिए कि एक बार में, गिलोटीन का लिटरल मीनिंग होता है दिस वाज अ प्रैक्टिस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स विच वाज फॉलोड इन एंशियंट ग्रीस वगैरह, यहाँ सब जगहों पे होता था ये सब कुछ, है ना। तो एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स के लिए करते थे ये लोग। तो इसमें क्या होगा, वो एक ऐसे चौराहे पे जाके एक पर्सन जो भी क्रिमिनल था उसको ऐसे लिटा देंगे ग्राउंड पे, और ऊपर बड़ा सा एक हैवी ब्लेड रहेगा, ठीक है। और दैट विल बी ड्रॉप्ड ऑन द हेड, ऑन द नेक ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। तो दिस वाज नोन एज गिलोटीन, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हुआ, एकदम से कर दिया, है ना। तो वही है कि एट वंस ओनली द इंटायर डिमांड्स ऑफ grants will be voted upon, अगर if they are short of time then this will be done. Then you have appropriation bill. Appropriation bill में क्या होगा, the parliament will pass this bill in order to authorize spending from the consolidated fund of India. So we have already read about this, है ना। ऊपर यहाँ पे पढ़ा था कि there are finance bill and appropriation bill and the third one is the annual financial statement, ठीक है। Next we have the finance bill. So finance will be finance bill will be regarding the taxes, tax proposals, ठीक है। तो parliament will pass this bill to enact the budget's tax proposals, ठीक है। So ये सब हमें पता ही है ना। These two we already know. This one is important. गिलोटीन और कट मोशन के बारे में दिया है इसमें, और बाकी भी पता ही होना चाहिए कि क्या क्या है। प्रेजेंटेशन होगा, जनरल डिस्कशन होगा, देन डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी विल बी कैरिड आउट, आफ्टर दैट वोटिंग विल बी डन, एंड देन अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल विल ऑल्सो बी पास्ड, ठीक है। नाउ वी लुक एट वोट ऑन अकाउंट. So vote on account is something which keeps the government running, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, it authorizes the government to spend money from the consolidated fund of India for a limited period of time, typically at the start of a new financial year before the full budget is passed, ठीक है। तो ये पहले होता था, दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड बिकॉज अभी क्या है, द बजट, earlier budget used to be presented in March as far as I remember. Now what have they done is that they have preponed it by a month or so, है ना। तो पूरा जो बजट का प्रोसेस है इट गेट्स ओवर बाय द टाइम द फाइनेंशियल ईयर एंड्स, ठीक है। सो फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर द बजट कम्स इन टू प्ले डायरेक्टली, ठीक है। सो ये क्या है, इट ऑथराइजेज द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर अ लिमिटेड टाइम. The budget process can take several months. So without a vote on account, the government
will be short of money. ठीक है, it won't be able to meet its expenses. So duration क्या है, used to be granted for nearly 2 months, and स्पेंडिंग कितनी अलाउड थी, 1/6 ऑफ द एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर के लिए. हाउएवर अभी दिस थिंग हैज़ बीन डन अवे विद. ठीक है, बिकॉज क्या होता है आजकल, द बजट प्रोसीजर हैज़ बीन प्रीपोन्ड. ठीक है, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वोट ऑन अकाउंट. नेक्स्ट देख लेते हैं. बस यू शुड जस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, वोट ऑन अकाउंट. ठीक है, तो दिस इज द टेम्पररी अमाउंट ऑफ मनी विच इज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंसेस. टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए कि 2 महीने तक देते थे. एंड द अमाउंट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर दैट इट वॉज 1/6 ऑफ द बजट्स एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो 2 महीने, देखो क्यों 1/6 क्यों है, बिकॉज 2 मंथ्स के लिए दिया है. 12 मंथ्स के लिए सपोज एक्स है बजट का एक्सपेंडिचर, तो 2 मंथ्स के लिए और कितना हो जाएगा, 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, x/12 है ना, यूनिटरी मेथड. देन 6 मंथ्स के लिए, आई एम सॉरी, 2 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, x/12 इंटू 2. ठीक है, सो दैट बिकम्स x/6. सो दैट इज 1/6 ऑफ द एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर इज प्रोवाइडेड हियर. ठीक है, और इंटरिम बजट देख लेते हैं. सो इंटरिम बजट इज अगेन अ टेम्पररी मेजर. ठीक है, so when there is a transition year, for example it is an election year, it is then that an interim budget is presented. ठीक है, so a budget presented when a government is in transition, that is known as the interim budget. ठीक है, तो इलेक्शन ईयर, कोलिशन का इंस्टेबिलिटी एक्सेट्रा उस सब में. पर्पस क्या है इसका, टू मेंटेन एसेंशियल गवर्नमेंट फंक्शंस विदाउट मेजर पॉलिसी चेंजेस और पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट्स. So this fact is important कि there won't be any major policy changes which will be brought about. ठीक है, या कोई भी populist announcement नहीं करेंगे. ठीक है, validity क्या है इसका, it will cover the entire financial year but it can be modified by a new government. ठीक है, तो क्या यूजुअली क्या होता है, द गवर्नमेंट कम्स अप विद द इंटरिम बजट इन February, है ना. Afterwards, if a new government comes to power, or even if the same government remains in power, तब जून जुलाई में जाके ना, after the elections are over, they come up with the new budget. ठीक है, so that is what is normally done. ठीक है, then examples क्या हैं, वही 2004 2009 सब में आया था, एक interim budget was given and then a full budget was also given. ठीक है, the only difference between these two, एक तो it is bought in a transition year, plus it will be avoiding any significant new policies, और ऐसे कोई भी major policy decisions will not be made here, or major announcements will not be made in the interim budgets. And what is the reason for this? MCC. MCC may or may not be in play when the budget is presented. MCC का full form क्या होता है, Model Code of Conduct. ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर द गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड, दे आर जस्ट अलाउड टू कैरी आउट विद देयर यूजुअल ड्यूटीज़, एंड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कोई भी मेजर पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट्स करना नहीं अलाउड होता है. ठीक है, सो इवन दो इंटरिम बजट के टाइम पे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि MCC इज़ इन फोर्स और समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल they follow this principle कि they will be avoiding any significant policy announcements. ठीक है, नेक्स्ट है important notes क्या है, the term interim budget is not mentioned in the constitution, so this is important since ऐसे वाले questions they generally ask in the exam कि constitution में mentioned है कि नहीं ये वाला term. ठीक है, then it follows the same presentation and approval process as a general budget. General is the exact same when it comes to the matter, है ना. तो वही 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे और 6 स्टेजेस होंगे, जो पहले बजट में पढ़ा था हमने. द सेम थिंग विल बी हियर एज वेल. और हाँ, इसको वैसे जनरल बजट बोलते हैं, फुल बजट नहीं बोलते. जो
after the interim budget which is brought forth, that is known as the general budget. ठीक है. So in the examination, if you write it down, then do mention that it is we are talking about the general budget. ठीक है. Next we will be looking at budget's theme. So while not constitutionally required, finance ministers sometimes use themes to highlight the budget priorities and generate media attention. ठीक है. तो देर हैव बीन वेरियस ट्रेंड्स इन द पास्ट, तो वही दिया है. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जस्ट वील बी वंस वी स्टडी 2026 का बजट, देन वील लुक एट द बजट्स थीम. जो 2026 का थीम था दैट मे बी इम्पोर्टेंट, बाकियों का इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. Economic survey. So before the budget is presented in the parliament, a day prior to that, the economic survey is presented by the chief economic advisor. ठीक है. Chief economic advisor is the person who presents the economic survey. ठीक है. And अभी कौन है? अभी it is Dr. V. Anant Nageshwaran जी, who is the chief economic advisor. नागेश्वरन. ठीक है. है ना. इसमें वो वी विल रीड अबाउट द ऐसे जो भी दिया है यहाँ पे. ट्रेडिशनली इट इज़ अ सिंगल वॉल्यूम डॉक्यूमेंट which is presented before the budget, and in 2014-2015 it was shifted to a 2 volume format. और वो जैसे IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आता है वैसे दे हैड सेपरेटेड इट. सो 1 volume was रिगार्डिंग पास्ट डेटा, है ना, जो भी साल निकल गया उसका डेटा, एंड द अदर डॉक्यूमेंट हैड फ्यूचर सजेशंस. ठीक है. देन 2021 में अगेन वेंट पेपरलेस, इट बिकेम पेपरलेस, एंड देन अगेन इन 21-22 अगेन इट रिटर्न टू बीइंग अ सिंगल वॉल्यूम ओनली. ठीक है. So now the most important thing about this is that it is published by the principal economic advisor, but it is presented by the chief economic advisor. ठीक है. Again this is very important. So both the posts are different as far as I know. Principal economic advisor अभी कौन है? संजीव सान्याल जी है. ठीक है. I'll just write it down over here. संजीव सान्याल. ठीक है. फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के बारे में देख लेते हैं. ही और शी प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है. एक्सपर्ट हैं वो बेसिकली, एंड द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वर्क्स विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है. उनका टेन्योर इज ऑफ नियरली 3 years, and there is always a possibility of reappointment. And it is neither a constitutional nor a statutory body. ठीक है. And the chief economic advisor also oversees the Indian economic service officers. ठीक है. तो उनके चीफ टाइप काम करते हैं ये, है ना. Then some notable CEAs have been given here. So Manmohan Singh ji, Raghuram Rajan, Arvind Subramaniam. ठीक है. All of these people were also chief economic advisors at one time. ठीक है. इकोनॉमिक हाँ. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्रीज एंड इट्स डिपार्टमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या आता है? देर आर a number of departments. I'll just tell you the number. First of all we have the department of expenditure. ठीक है. सेकेंडली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. थर्ड है
BPE, अच्छा उसको चेंज कर दिया है ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ पे ऑल ऑफ देम हैव नॉट बीन मेंशन्ड हियर, वेट अ सेकेंड। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील जस्ट सी कि कौन से हैं। वी हैव द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। देन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, एंड लास्ट वन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो देर आर 6 डिपार्टमेंट्स इन ऑल, ठीक है। तो इनको लर्न कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इनको ग्रुप करके वी कैन रिमेंबर देम इजीली। सो फॉर एग्जांपल जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू वाला है वो साथ में हमको याद हो जाएगा। देखो एक्सपेंडिचर का भी एक डिपार्टमेंट है और एक रेवेन्यू का भी डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो दीज टू यू कैन रिमेंबर इजीली। देन वी जस्ट रेड के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ही हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। सो दिस वन ऑल्सो यू कैन रिमेंबर दैट वे, ठीक है। यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इज हेडिंग दिस एंड ही इज़ द पर्सन हु प्रिपेयर्स द वो अपना इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। ही इज़ इन चार्ज फॉर ओवरसीइंग द प्रिपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। आफ्टर दैट क्या बच रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सो वी हैड बीन रीडिंग अबाउट बैंकिंग, NBFCs, all of these. So all of these are a part of are a form of financial services, ठीक है। तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी पढ़ा था पिछले वीडियोस में, ठीक है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। Then we have Department of Investment and Public Asset Management. तो इसका द नेम itself is self explanatory कि ये दिस विल बी मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स इक्विटी, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, है ना। ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ विल बी मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। देन होता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है हमारे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या ऑर्गेनाइजेशंस या पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो भी हैं, ऑल ऑफ दोज विल बी मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ऑल ऑफ द दोज कम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। सो दीज आर द 6 मेन डिपार्टमेंट्स, यू शुड नो दीज, है ना। और फाइनेंस मिनिस्टर तो हमें पता है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, एंड द फाइनेंस सेक्रेटरी is right now it is Shri TV Somanathan, ठीक है। now we'll read this कि क्या थोड़ा थोड़ा there are some facts given here. I have taken the मतलब the entire thing is from Mronal sir's notes only. These have just been summarized थोड़ा सा, ठीक है, for quick revision. Now Department of Expenditure में देख लेते हैं। There are key institutions and portals which are related to public finance. So first of all there is Arun Jaitley National Institute of Financial Management, which is in Faridabad. So Arun Jaitley ji was also a finance minister earlier, है ना, in the NDA government itself. This institute focuses on training and research in financial management, ठीक है। तो क्या नाम क्या है? अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, and it comes under the I think it comes under the Department of Expenditure, ठीक है। Then we have some web portals which come under the Department of Expenditure. उसमें सबसे पहले आप लर्न कैसे करेंगे कि अरुण जेटली इंस्टीट्यूट ऑफ इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे करके बना लो कि अरुण जेटली जी वॉज अ अर्लियर फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ द इंटायर फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस के
The Arun Jaitley National Institute of Financial Management is related to financial management, training and research in financial management. ठीक है? Then we'll be looking at expenditure department के web portals. First of all, we have PFMS. PFMS stands for Public Financial Management System. और देन भारत कोश करके एक है, दैट इज नॉन टैक्स रिसीट्स पोर्टल. देन पारस है एक. ठीक है. सो दीज आर द थ्री पोर्टल्स विच आर प्रेजेंट, है ना. तो जो फर्स्ट वाला है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इट बेसिकली फैसिलिटेट्स फंड डिस्पर्सल टू यूनियन एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स. ठीक है. तो फंड्स जो होते हैं हमारे, उनको डिस्पर्स कर देता है टू द यूनियन गवर्नमेंट as well as the state governments. So that can be monitored by the public financial management system. So the name itself is again self explanatory here. ठीक है. पब्लिक का जो फाइनेंसेस है उनको मैनेज करने का सिस्टम. ठीक है. तो जो भी फंड्स और फाइनेंसेस विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनियन एंड स्टेट्स and their different departments, those can be managed via this portal. Then we have Bharat Kosh, non-tax receipts portal, है ना. So again the name itself is self-explanatory. जो हमारा गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका देर इज़ ऑनलाइन सेल विच इज़ बीइंग डन एज वेल. ठीक है. सो दो सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस पोर्टल. सो एग्जांपल क्या है, इट विल बी इनेबलिंग ऑनलाइन सेल्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक India Yearbook, then Yojana, Kurukshetra magazines, all of these are being sold online. ठीक है. And the government will earn non-tax revenue by selling these. ठीक है. सो इन सबको सेल करने के लिए दे आर लिस्टेड ऑन भारत कोश. नेक्स्ट है पारस. सो पारस बेसिकली मैनेजेस पेंशन रिलेटेड अकाउंट्स. ठीक है. इसका एक सेकेंड, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. ठीक है. तो ये बस ऐसे लर्न कर लो क्या किस काम के लिए है. पेंशन रिलेटेड अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए देयर इज दिस पोर्टल नोन एज पारस. ठीक है. I have checked it but I am not able to find it right now. Paras pension. हाँ मेरे को मिल गया है. दिस इज, आई विल जस्ट गिव यू द फुल फॉर्म ऑफ द पारस. पारस का फुल फॉर्म है पेंशन ऑथराइजेशन रिट्रीवल एंड अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पारस. Pension Authorization Retrieval and Accounting System. It is used by the Central Pension Accounting Office of India to manage pension payments for सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनसे. ठीक है. तो CPAO के अंडर भी आता है ये. दैट इज द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस. ठीक है. So these three portals you should remember. Next we'll look at Department of Financial Services और उसके अंदर क्या कुछ major portal है क्या, portal या कोई भी organization. So we have e-Bicray portal which comes under the Department of Financial Services. ठीक है. And the main
Application of this portal is to allow online auction of attached assets by public sector banks for loan default. ठीक है, so we have already read about this in the chapter on banking, in the video on banking. ठीक है, तो ऑनलाइन ऑक्शन करने के लिए दिस कम्स इनटू प्ले. फॉर एग्जांपल जो कोलैटरल देते हैं बैंक्स को, पीपल गिव कोलैटरल टू द बैंक्स, है ना, एंड इन केस दे आर नॉट एबल टू पे बैक द लोन्स, देन दिस कोलैटरल और मॉर्टगेज एसेट्स जो भी होते हैं, दे कैन बी ऑक्शनड ऑफ बाय द banks. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कंडक्ट ऑक्शंस ई बिक्रे पोर्टल इज बीइंग यूज्ड. ठीक है, और इसका नाम बिकने के लिए, सो दिस इज सिंपल टू रिमेंबर कि ई बिक्रे इट इज रिलेटेड टू ऑनलाइन ऑक्शन ऑफ अटैच्ड एसेट्स बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ठीक है, डू रिमेंबर दैट ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल बी द वंस हु विल बी ऑक्शनिंग ऑफ द कोलैटरल या जो भी अटैच्ड एसेट्स इन दिस पोर्टल. ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है ये ऑक्शन करने के लिए पोर्टल. ठीक है, देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ, ये यहाँ डीपी इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. ठीक है, सो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर एक आता है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन. ठीक है, सो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस किससे रिलेटेड है? It is one of the nodal ministries for all the public enterprises which are there in our countries. तो पब्लिक एंटरप्राइजेस के क्या रहेगा? जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं हमारे कंट्री में, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं. ठीक है, ऑल ऑफ दीज कम अंडर पब्लिक एंटरप्राइजेस. ठीक है, सो पी एस यू कैसे, जैसे बी एच ई एल, ओ एन जी सी, ये सब चीज़ें है ना. सो ऑल ऑफ दीज विल बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ दीज. नोडल डिपार्टमेंट विल बी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. ठीक है, यहाँ पे पर्पस क्या है इसका? टू मोनेटाइज सरप्लस और नॉन कोर लैंड सेट्स which are owned by the government departments and companies, and they'll also help in generating revenue by renting or selling unused land. ठीक है, तो इसमें बताऊँ क्या होगा, आई जस्ट टेल यू. जैसे फॉर एग्जांपल कोई बी एच ई एल करके एक कंपनी है, इनके पास में देयर विल बी लार्ज हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, हेक्टेयर्स या एकर्स ऑफ लैंड अंडर देयर कंट्रोल. ठीक है, एंड जो मेन इनका जो इंडस्ट्रियल यूनिट रहेगा, दैट विल बी ऑन अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड, बाकी अ लॉट ऑफ इट मे बी लाइंग आइडल. ठीक है, इतने पे उनकी इंडस्ट्री है, इतने पे सपोज उनका जो भी घर है और लोगों के, है ना, ऑफिशियल्स के, दैट विल बी हियर. बाकी द रेस्ट ऑफ द लैंड विल बी लाइंग आइडल. ठीक है, सो ये आइडल लैंड ऐसी पड़ी है एंड इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एनी थिंग, है ना. सो द गवर्नमेंट केम अप विद दिस स्कीम, दैट इज़ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन. दिस नॉट अ स्कीम, मतलब एक कॉरपोरेशन बनाया उन्होंने. अंडर दिस अमाउंट ऑफ जो सरप्लस लैंड है उसको यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू. एंड हाउ कैन दिस बी डन? दे कैन आइदर रेंट दिस अमाउंट ऑफ लैंड, जो एक्सेस लैंड है उसको किसी को रेंट पे दे देंगे. ठीक है, या फिर दे कैन ऑल्सो, व्हाट एल्स कैन दे डू, दे कैन सेल दिस अनयूज्ड लैंड. ठीक है, अनयूज्ड लैंड को दे कैन सेल इट टू some other corporations or something companies. ठीक है, that can also be done. So these are, all of this entire activity will be done by the National Land Monetization Corporation. ठीक है, तो वही दिया है यहाँ पे. और स्ट्रक्चर क्या है? इट विल बी 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, दिस NLMC, under the Department of Public Enterprises with a paid up capital of around 150 crores. ठीक है, so this is not very important जो paid up capital है, but you need to remember that it is a 100% government owned company. ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट देख लेते हैं. इट विल बी हायरिंग
प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स फॉर एफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट। एसेट, ये एसेट है ना, ये पूरी लैंड जो बची हुई है ना, तो इसको मैनेज करने के लिए दे माइट हायर प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल सो दैट आइदर दिस लैंड, मतलब दे विल कम अप विद अ प्लान के इसको क्या रेंट पे दें कि या तो इसको शैल इट बी सोल्ड, या जो भी करना है दे विल डू इट, है ना। देन कॉन्टेक्स्ट क्या है, इट अलाइंस विद वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, है ना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ऑल ऑफ दीज स्कीम्स या जो भी इनिशिएटिव्स हैं, दे आर फोकसिंग अपॉन लीवरेजिंग द पब्लिक असेट्स। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज स्कीम्स आर डूइंग दैट। सो इन सब के लिए देर इज वन कॉरपोरेशन विच हैज़ बीन बिल्ट, दैट इज NLMC, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज स्कीम्स विल बी इम्प्लीमेंटेड वाया NLMC। ठीक है, क्योंकि सब में सिमिलर चीज़ें हो रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे बाय लीवरेजिंग पब्लिक असेट्स। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस नेम्स ऑफ द स्कीम्स एज वेल। क्या क्या है, PM गति शक्ति योजना है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। ठीक है, सो दीज नेम्स यू शुड रिमेंबर। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, सो ये दिस इज़ अ वेरी फेमस डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, and it is headed by a constitutional body who is the CAG, that is Controller and Auditor General of India. ठीक है, सो इनका वन इन देर इज दिस सिस्टम, वन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वन सिस्टम। ठीक है, एंड दिस हैज़ बीन मेड बाय द CAG फॉर पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने एक OIOS सिस्टम बनाया है, दैट इज़ वन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट वन सिस्टम। और उसमें दिस विल बी एन ऑनलाइन पोर्टल विच इज़ प्राइमरली एम्ड टू प्रमोट पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड वही ऑडिटिंग के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ दोज विल बी अपलोडेड देयर। ठीक है, सो डू रिमेंबर द नेम, दैट इज़ वन, दिस इज अ लेंदी नेम बट स्टिल यू शुड रिमेंबर इट, वन ऑडिट वन सिस्टम, ऐसे करके कुछ भी लर्न कर लो, वन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स वन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट हाँ बजट का। देखो बजट हैज़ टू पार्ट्स इन, देखो यहाँ पे आई जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर। बजट can be categorized into two parts, revenue and expenditure। ठीक है, एक्सपेंडिचर है ना, सो रेवेन्यू मतलब जो पैसे आ रहे हैं, एंड देन एक्सपेंडिचर इज समथिंग विच इज़ गोइंग। ठीक है, सो रेवेन्यू में मनी विल बी कमिंग हियर, एंड एक्सपेंडिचर मनी विच इज़ बीइंग यूज्ड अप। ठीक है, देन रेवेन्यू में भी देयर विल बी टैक्स मतलब एक तो रहेगा रिसीट्स, है ना, इसमें भी देर आर टू टाइप्स, दैट इज टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे होता है इसका क्लासिफिकेशन। आई विल गिव यू अ प्रॉपर डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम, ये so government budget, it has been divided primarily into two types. We have the revenue budget and the capital budget। ठीक है, revenue budget is further divided into revenue receipts and revenue expenditure। Similarly, capital budget has been divided into capital receipts and capital expenditure। ठीक है, तो इसमें मैं आई जस्ट टेल यू द डिफरेंस। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट को तो पता है हमको, है ना,
देन वी ऑल्सो हैव, इसमें डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में, आई विल जस्ट टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टू. जो रेवेन्यू वाला पोर्शन रहेगा ना, it will not have any effect on the assets, not have effect on the assets, whereas capital budget, it will have a effect on the effect, it affects the assets. ठीक है. तो कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, जैसे कि इफ़ यू आर गेटिंग सम, हाँ, इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ लोन और उसको वापस सारा पैसा मिल रहा है लोन का, दैट विल बी कैपिटल रिसीट. इसमें एसेट क्यों क्यों फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज लोन वॉज इनिशियली एन एसेट एंड इट हैज़ बीन रिटर्न, है ना. जैसे मैंने अगर किसी को लोन दिया है तो मेरे लिए दैट विल बिकम एन एसेट, है ना. अब इफ़ दैट पर्सन whom I had given a loan to returns the entire money back to me, देन आई विल नो लॉन्गर हैव एन एसेट. ठीक है, तो मेरा एसेट का चेंज हो गया, सो दैट विल कम इन कैपिटल रिसीट. ठीक है. सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिससे एसेट बढ़ रहा है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू बाय लैंड, है ना, सो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. तो ये सब, ऑल ऑफ दैट विल कम अंडर कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट में समथिंग विच डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन दी असेट्स. ठीक है. तो इसमें भी देर आर फर्दर डिविजन्स, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. देन दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं दे कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है. और एज द नेम सजेस्ट, टैक्स रेवेन्यू में क्या रहेगा, जो टैक्स से हमको गवर्नमेंट को पैसा मिलता है. ठीक है. एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इज़ फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सर्विसेज. फॉर एग्जांपल जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब मैगजीन्स द गवर्नमेंट प्रिंट्स एंड मतलब पब्लिशेस देम. ठीक है. तो वो मैगजीन अगर कहीं पे बिक रही है, सो द अमाउंट ऑफ मनी विच कम्स थ्रू दैट विल बी काउंटेड अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू. सिमिलरली वी हैव रेलवेज, है ना. रेलवेज में जो पीपल बाय टिकट्स, सो द अमाउंट ऑफ मनी, जो टिकट खरीद के जो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, मतलब टिकट के सेल से जितना पैसा मिल रहा है, दैट विल कम अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है. नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसमें क्या क्या है, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो इसमें वही आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी लाइक, जिससे असेट बढ़ नहीं रहा है ना, तो कुछ भी जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह रहेंगी, दोज विल कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. देन कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो दीज आर दी ओनली टाइप्स, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. ठीक है. नाउ विल गो बैक टू द इनिशियल थिंग. हाँ, अभी सबसे पहले वी आर लुकिंग एट बजट का रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रिसीट्स को देख लेते हैं. ठीक है. जो अभी हमने टेबल देखा, इसमें से वी आर लुकिंग एट दिस पोर्शन राइट नाउ. ठीक है. So now there are two types of taxes primarily. We have direct tax and we also have indirect taxes. ठीक है. तो फीचर क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस किस चीज़ पे आता है, इट डिपेंड्स अपॉन whom द टैक्स इज इम्पैक्टिंग. ठीक है. डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, जो इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है टैक्स का, हु विल बी कलेक्टिंग एंड पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट. ठीक है. तो जब डायरेक्ट टैक्स पड़ रहा है तो मेरे पे डायरेक्टली बढ़ रहा है, सो आई विल बी द पर्सन हु इज़ डायरेक्टली पेइंग द टैक्स. ठीक है. जैसे सैलरी पे पड़ रहा होता है ना, सो मेरा कोई भी सैलरी आ रहा है उस पर देर इज इट इज़ बीइंग टैक्सड. ठीक है. दैट विल कम अंडर डायरेक्ट टैक्सेस. वेयर एज नाउ इन केस देर इज़ अ शॉपकीपर. ठीक है. ही इज सेलिंग सोप, फॉर एग्जाम्पल ही इज सेलिंग सोप. ठीक है. तो सोप का जितना भी प्राइस रहेगा उस पे देर विल बी सम टैक्स एडेड. ठीक है. जीएसटी रहेगा, है ना. तो क्या हुआ, ये वाला टैक्स कौन पे कर रहा है, इवन दो इट इज़
यहाँ पे लग रहा है, शॉपकीपर पे लग रहा है, बट इट इज़ बीइंग पेड बाय द कस्टमर हु बाइज द सोप। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि इसमें द पर्सन हु इज गिविंग द मनी विल बी डिफरेंट, है ना, और जिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। सो शॉपकीपर पे है टैक्स, बट द मनी इज बीइंग पेड बाय द कस्टमर, whereas in the direct tax के केस में both the person collecting the tax and the person who's bearing the burden, it will be the same। ठीक है, तो यहाँ पे द टेबल represents that only कि इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है और इंसिडेंस किस पे है। इम्पैक्ट पड़ना मतलब who will be collecting the tax, who will be collecting and paying the tax to the government, whereas incidence किस क्या का मतलब क्या है, who will be ultimately bearing the burden of the tax। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में इट विल बी द सेम पर्सन हु इज जिस पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों पड़ रहा है, whereas in the case of indirect taxes the shopkeeper will be the one who will be paying it to the government, whereas बियर कौन कर रहा है पूरा टैक्स को, इट विल बी द कस्टमर। ठीक है, सो दिस विल बी फॉलोइंग ऑन डिफरेंट पीपल। ठीक है, सो इसका एसेंस में बता देते हैं। द डायरेक्ट टैक्सेस आर levied on income and wealth and the burden cannot be shifted। ठीक है, whereas indirect taxes में they are levied on goods and services and the burden is typically passed on to the consumer। ठीक है, now there are different types of taxes as well। we have progressive tax and regressive tax। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेस में क्या रहेगा, प्रोग्रेसिव है मतलब इट इज़ गुड, और रिग्रेसिव मतलब थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन रहता है इसका, है ना। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होगा, द टैक्स रेट विल इंक्रीज एज द इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, सो द पर्सन हैविंग मोर इनकम विल बी पेइंग मोर टैक्सेस। तो जैसे इनकम टैक्स होता है, इट हैज़ वेरियस डिफरेंट स्लैब्स। ठीक है, तो 5%, 20%, 30% ऐसे स्लैब्स रहेंगे। सो इट विल बी प्लेसिंग अ हायर बर्डन ऑन द वेल्दी पर्सन। ठीक है, and most of the direct taxes, that is taxes on the income and wealth, they are usually progressive in nature, whereas regressive tax में क्या होगा, the tax rate will decrease as the income increases। इसका मतलब क्या है, जैसे कि लुक एट जीएसटी। जीएसटी में यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, उस पे कितना है, 18% जीएसटी अगर लग रहा है। सो फॉर एग्जांपल अ पुअर पर्सन कम्स टू बाय दिस, है ना, इनका इनकम ही कितना है, सपोज ही अर्न्स ओनली 500 रुपीज़ पर डे, है ना, ही इज़ हैविंग टू पे 18% जीएसटी ऑन दिस पैकेट ऑफ बिस्किट्स। नाउ अनदर पर्सन कम्स, ही इज़ क्वाइट रिच। ठीक है, इनको कितना इनकम है डेली का, पर डे ही अर्न्स अराउंड 50,000 रुपीज़। even he is paying only 18% GST on the same पैकेट ऑफ बिस्किट। ठीक है, तो इनके लिए तो इट इज़ जस्ट पीनट्स। ठीक है, कुछ भी नहीं है इतना बिस्किट का जो टैक्स लग रहा है, वेराज इसके लिए तो इट विल बी अ वेरी मेजर अमाउंट। ठीक है, सिंस ही इज ऑलरेडी अर्निंग सो लो। ठीक है, सो इट विल बी इम्पैक्टिंग लोअर इनकम इंडिविजुअल्स मोर प्रोपोर्शनली। ठीक, therefore most indirect taxes are generally considered to be regressive in nature। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव में क्या होगा, इट विल इंक्रीज, द टैक्स रेट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम, वेराज रिग्रेसिव में क्या होगा कि सेम टैक्स रेट लग रहा है या तो, है ना, तो क्या हो रहा है कि इनकम जितनी भी है उसकी ज़्यादा इनकम है तो उस पर इम्पैक्ट कम ही पड़ रहा है, इवन दो हिज इनकम इज़ मोर, the amount of tax which he is having to pay is quite less। ठीक है, proportional to his income। ठीक है, now key idea क्या है, progressive tax aim to among redistribute the wealth and reduce income inequality। ठीक है, और regressive tax can worsen income inequality as they take a larger percent of the income from poor। ठीक है, क्योंकि जैसे सपोज ये अगर 18% जीएसटी लगा के कितना जीएसटी बन रहा है, 100 रुपये बन रहा है, मतलब इनका 1/5 इनकम तो उसी को देने में चले गया।
है ना, यहाँ बिस्किट का टैक्स देने में चले गया, मेरा इनके लिए कितना होगा, 100 रुपीज़ ऑफ 5,000, कितना 50,000, दैट टू इन अ डे। तो मतलब ओनली 1/500th ऑफ हिज इनकम इज गोइंग in paying money for this, that is money, paying taxes for this packet of biscuits। ठीक है, तो प्रोपोर्शनली इन पे ज़्यादा प्रोपोर्शन का टैक्स लग गया है ना। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स। नाउ वी विल बी लुकिंग एट टाइप्स ऑफ, ये तो हो गया ना। हाँ, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में देख लेते हैं क्या दिया है। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वी हैव proportional tax, progressive tax and digressive tax। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज दिस विद द ये वाला पोर्शन, दिस इज आर ओवरऑल क्लासिफिकेशन, वेयर एज यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस के क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या रहेगा, इट इज सेम एज दी अबव। इसमें टैक्स रेट विल इंक्रीज एज द इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, सो द करंट इनकम टैक्स सिस्टम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द सेम। देन प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या होगा, देर इज अ सिंगल फ्लैट टैक्स रेट विच इज बीइंग अप्लाइड टू ऑल इनकम लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल आपका जितना भी इनकम हो, टैक्स रेट कितना रहेगा, 10% ऑफ योर इनकम, ऐसे करके अगर कुछ आ जाए 10% ऑफ इनकम, तो इवन इफ यू अर्न 500 रुपीज़ पर डे तब भी 10% ऑफ इनकम रहेगा, एंड इवन इफ़ यू अर्न 50,000 पर डे तब 10% ऑफ 50,000, मतलब ये तो डेली इनकम लिख दिया है मैंने, मंथली में इतना लगेगा। ठीक है, देन देर इज डिग्रेसिव फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। इसमें क्या होगा, इट विल बी अ हाइब्रिड ऑफ प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। So the tax rate will be increasing initially, but then it becomes a flat rate at a certain income level। ठीक है, तो डिग्रेसिव टैक्सेस ऑल्सो एग्जिस्ट, ये बेसिकली मिडिल ग्राउंड टाइप है, इन दोनों के बीच का है, मिडिल पाथ काइंड ऑफ अ थिंग है। इसमें क्या होगा, बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल बी हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड आफ्टरवर्ड्स इट विल बिकम प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऐसा रहेगा इसका कुछ ग्राफ, कि इनिशियली इनकम के साथ बढ़ेगा, देन आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम it will remain constant throughout। ठीक है, so again these three are also important, and in case in the examination if they ask कि income tax कौन से type का रहता है, so your answer should be that income tax is a progressive form of taxation। ठीक है, next देख लेते हैं। so we have already seen this table, है ना। now we'll be looking at Adam Smith's 4 canons of taxation। So this concept was given by Adam Smith। He was a very famous economist, है ना। वेल्थ ऑफ नेशंस उन्होंने लिखा था, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो इन्होंने दिए थे 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या मतलब का क्या है, दीज आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ गुड टैक्सेशन सिस्टम दीज 4 प्रिंसिपल्स शुड बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द कैनन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि टैक्सेशन शुड बी बेस्ड अपॉन द एबिलिटी टू पे, सो वेल्दियर इंडिविजुअल्स शुड कंट्रीब्यूट मोर। ठीक है, देन देयर इज द कैनन ऑफ सर्टेनिटी। उसका मतलब क्या है, जो टैक्स के रूल्स हैं, रेट्स, डेडलाइंस एंड ऑल दोज रेगुलेशंस, दे शुड बी वेरी क्लियर एंड प्रिडिक्टेबल। कुछ भी ऐसे सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहना चाहिए टैक्सेशन में के केस में। ठीक है, देन वी हैव द कैनन ऑफ कन्वीनियंस। इसमें क्या हुआ, द टैक्स पेमेंट शुड बी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो एज द नेम सजेस्ट इट शुड बी कन्वीनियंट। ठीक है, देन वी हैव द कैनन ऑफ इकोनॉमी। इसमें क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस,
that should be very low. It should be minimized as much as possible. ठीक है, तो आई एम सॉरी, चार वो हैं प्रिंसिपल्स हैं, ई सी सी ई या ई सी कर लो, मतलब इजी, ई सी कर लो, है ना, दैट विल बी इजियर टू रिमेंबर. सो इट इज़ इजी. सो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर वेरी इजी. ठीक है, इसी से दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कैनन ऑफ इक्वालिटी, देन सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी. ठीक है, ये ट्राई टू रिमेंबर दिस: इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी. नाउ वी आर लुकिंग एट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. सो डायरेक्ट टैक्सेस जो इंडिया में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लीवाई करता है, उनको पहले देख लेते हैं. देखो, डायरेक्ट टैक्सेस आर लीवाइड बाय बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वो वाले टैक्सेस देखेंगे विच आर बीइंग लीवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विच आर डायरेक्ट टैक्सेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉरपोरेशन टैक्स, जो इनकम पे लगते हैं. उनमें सबसे पहले वी हैव द कॉरपोरेशन टैक्स which is applied on profits of a company. ठीक है, then we have minimum alternate tax. फिर इनकम टैक्स रहता है ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, however this excludes agricultural income. This is very important again. ठीक है, then we have capital gains tax. so अगर if you sell something, है ना, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगते हैं. ठीक है, देन ऑन असेट्स एंड ट्रांजैक्शंस उस पर क्या क्या लगेगा? यू हैव द सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स. ठीक है, तो कोई शेयर या कुछ बेचा, देन यू विल हैव टू पे सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स. एंड कोई कमोडिटी जैसे गोल्ड वगैरह बेचा तो शायद कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है उस पर. ठीक है, देन देर आर सम direct taxes which have been abolished by the government. ठीक है, um, they were being implemented before but no longer now. ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या है इसके? देयर इज़ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, होटल रिसीट टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड फ्रिंज बेनिफिट टैक्स. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, however they have been abolished. Now we'll be looking at all the direct taxes of the state government which are being levied by the state government. ठीक है, so first of all income पे कौन सा लेते हैं वो लोग? The state government can take agricultural income tax, however they do not take it. ठीक है, जो एग्रीकल्चरल इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, बट नॉर्मली नो स्टेट गवर्नमेंट लीवाइज टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफेशनल टैक्स करके भी ले सकते हैं ऑन इनकम. ठीक है, सो स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक ओवर प्रोफेशनल टैक्स एज वेल. हाउएवर देयर इज़ एन अपर लिमिट टू इट एंड दैट इज़ 2500 रुपीज़ पर ईयर. ठीक है, नेक्स्ट है ऑन एसेट्स एंड ट्रांजैक्शंस. these are major sources of tax for the state government. so land revenue वो एक मेजर सोर्स ऑफ टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. फिर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, है ना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है. अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा. ठीक है, देन ऑन एक्सपेंडिचर किस क्या लगेगा? रोड टैक्सेस. ठीक है, सो ये कहाँ पे होता है? ये व्हेन यू बाय अ कार और समथिंग लाइक दैट, व्हेन यू बाय अ व्हीकल देन यू हैव टू पे दिस. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, तो वही आपको याद रखना है इनकम पे, एसेट और असेट्स और ट्रांजैक्शंस में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस व्हिच आर बीइंग लीवाइड. सो अ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम हियर कि कौन सा टैक्स कम्स अंडर विच कैटेगरी. ठीक है, सो दैट यू नीड टू रिमेंबर. नेक्स्ट है एस्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स और इनहेरेंट टैक्स विच हैव बीन अबॉलिश्ड.
ठीक है, सो देर आर सर्टन टैक्सेस विच हैव बीन अबॉलिश्ड इन इंडिया due to low revenue collection and very high administrative costs involved. ठीक है, and there's also a lot of potential for tax evasion under them, so that is why they have been abolished. ठीक है, so examples क्या है, एक तो ऊपर पढ़ा ही था हमने, बट यहाँ पे further elaborate manner में it has been given. So first of all you have estate duty, inherent tax or the death tax. ठीक है, this is being levied on the property of a deceased person and it is payable by their heirs. मतलब कोई पर्सन मर गया है तो उनका जो प्रॉपर्टी रहेगा उस पे दिस टैक्स विल बी लेवाइड एंड उनका जो भी हेयर है कोई उनके जो जैसे बच्चे लोग हैं दे विल बी द वंस हु विल बी पेइंग इट. ठीक है, तो क्या इन तीनों का भी ऑल द थ्री रेफर टू द सेम थिंग, एस्टेट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी या इनहेरेंट टैक्स या डेथ टैक्स, ऑल ऑफ दीज रेफर टू द सेम थिंग. देन वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स क्या है, इट इज लिवाइड ऑन द नेट वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड. ठीक है, एंड दिस वाज हाउएवर अबॉलिश्ड इन 2015, है ना, और ये वाला जो था इनहेरेंट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स था, ये 1985 में अबॉलिश हो गया था. ठीक है, देन यू हैव गिफ्ट टैक्स. गिफ्ट टैक्स इज levied on gifts exceeding a certain value and this was abolished in 1998. ठीक है, so you do not need to remember the years when they were abolished. ठीक है, that is not important. बस ये आपको पता होना चाहिए कि these are not being levied right now. ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन रीजंस फॉर अबॉलिशन, वही अगेन इट हैज़ बीन रिपीटेड हियर. लो रेवेन्यू मिल रहा था इसके थ्रू, देयर वाज अ हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ दीज टैक्सेस, है ना, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर टैक्स इवेजन अंडर दिस. सो ओवरऑल हटा ही दिया गवर्नमेंट ने ये. ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट पेपर टैक्सेस. फॉर एग्जाम्पल यू हैव वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, है ना, ये सब चीज़ें, एंड एस्टेट ड्यूटी. देखो, इन सबको जो ऊपर ये सारे जो टैक्सेस है ना, दीज वर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दीज वर कॉल्ड एज पेपर टैक्सेस बिकॉज गवर्नमेंट नेवर अर्न द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दीज. ठीक है, दैट इज़ वाई दीज वर नोन एज पेपर टैक्सेस. ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको यू शुड नो बिकॉज इट इज़ मैंशनड इन द एनसीईआरटी. ठीक है, नाउ वी विल बी लुकिंग एट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, सो मेरिट क्या क्या है डायरेक्ट टैक्सेस की, एक तो दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, है ना, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस. ठीक है, सो इट विल बी रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटी. फिर उसके अलावा सिविक कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं, है ना, इट मेक्स सिटीजन्स अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट. देन इट विल प्रमोट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, टैक्स डिडक्शंस इनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज काफ़ी सारे सेविंग स्कीम्स ऐसे रहते हैं कि इफ़ यू पुट मनी देयर देन इट दैट अमाउंट ऑफ मनी विल बी exempt फ्रॉम एनी टैक्स. ठीक है, सो दिस प्रमोट्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. देन वी हैव इलास्टिसिटी. ठीक है, सो द टैक्स रेवेन्यू विल इंक्रीज विद इनकम ग्रोथ. ठीक है, दैट विल बी नोन एज इलास्टिसिटी. देन सर्टेनिटी रहता है, क्लियर रूल्स एंड डेडलाइंस आर प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट्स. देन करेंसी स्टेबिलिटी रहता है, दे कैन हेल्प स्टेबलाइज वेरियस एक्सचेंज रेट्स एज वेल. ठीक है, तो एग्जाम्पल टोबिन टैक्स का है, विल रीड अबाउट दिस लेटर. ठीक है, सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इन फैक्ट इवन मेंस में भी इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, यू शुड जस्ट नो दिस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, नेक्स्ट है डीमेरिट्स, देख लेते हैं. इट इग्नोर्स एक्सटर्नैलिटीज, सो इट डज नॉट अकाउंट फॉर द सोशल इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट इनकम सोर्सेज, है ना, और फिर हार्डशिप भी इग्नोर करता है. ये सब दिस इज़ वेरी जेनरिक, दीज आर जेनरिक पॉइंट्स गिवन, है ना.
नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इट डिसइंसेंटिवाइजेज वर्क और इन्वेस्टमेंट, सिंस क्योंकि पूरा टैक्स में जाते जा रहा है काफ़ी सारा पैसा, तो इट माइट डिसइंसेंटिवाइज वर्क, है ना. फिर है, देयर इज़ अ वेरी नैरो बेस, बिकॉज लो इनकम इंडिविजुअल्स काफ़ी सारे हैं हमारी कंट्रीज़ में, हमारे कंट्री में, वेर एज हाई इनकम individuals are very less. So income tax is only being levied on these small group of high income individuals. So um, they are bearing a very huge burden. ठीक है, huge burden they are bearing. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, evasion and litigation. There's a lot of possibility of tax evasion when it comes to direct taxes. ठीक है, legal dispute ये सब भी हो सकता है. Next we'll be looking at union taxes, cess and surcharges. ठीक है, so यूनियन टैक्सेस कौन सा रहेगा, taxes on the income, profits or transactions, those will be known as the union tax. ठीक है, and where will this money go, जैसे कोई कहीं पे भी टैक्स लगा है तो जो भी अमाउंट विच हैज़ बीन कलेक्टेड इट गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, and it is also shared with the states according to the finance commission's formula. Finance commission, you might be knowing कि it is constituted every 5 years, or and they come up with a formula to divide the tax revenue between the state center as well as the states. ठीक है, और within the states also there are certain horizontal classifications wherein it is divided. ठीक है, तो उसके वो जो है वो मेजर जो पैसा कहाँ से आता है, दैट इज़ द टैक्स विच इज़ बीइंग डिवाइडेड. ठीक है, तो अभी आपको पता होगा कुछ 41% इज़ बीइंग गिवन टू द स्टेट्स, है ना. सो दिस थिंग विल रीड इन द अपकमिंग वीडियोस फाइनेंस कमीशन के बारे में. नेक्स्ट है सर चार्जेस. सो टैक्स हमने देख लिया, टैक्सेस द इनकम लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम, प्रॉफिट्स और the money levied by the government on income, profits or transactions. Surcharges क्या रहेंगे, they will be a tax on tax. ठीक है, and they are calculated on the base tax amount. ठीक है, जितना भी बेस टैक्स है उसके अमाउंट पे दिस इज कैलकुलेटेड. और डेस्टिनेशन क्या रहेगा इसका, अगेन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इट इज़ नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स बाय द फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला, दिस इज केप्ट विद द गवर्नमेंट itself. ठीक है, सो दिस इज वेरी important that it is not being shared with the states. ठीक है, पर्पस क्या है, जनरली द पर्पस इज नॉट डिफाइंड, thus allowing for flexible use. ठीक है, इसका कोई भी प्री डिफाइंड पर्पस नहीं होता है जो सरचार्ज लगते हैं उसके, है ना. सो देर आर हाउएवर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल देर इज द सोशल वेलफेयर सरचार्ज. ठीक है, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर यूनियन सोशल वेलफेयर स्कीम्स. ठीक है, तो हम ये फैक्ट कैसे लर्न करेंगे कि द पर्पस इज नॉट वेल डिफाइंड. इसको ऐसे कर लो, सर चार्ज मतलब सर चार्ज, तो जो भी सर में आया उसके लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ ट्रिक इन ऑर्डर टू हेल्प यू रिमेंबर दिस, कि जो भी चीज़ सिर में आई उसके लिए ये यूज़ करेंगे. देयर इज़ नो प्री डिफाइंड पर्पस फॉर इट विच इट विल बी यूज्ड. However, there is an exception to this. There is the social welfare surcharge, which is specifically for union social welfare schemes. ठीक है, और कितना लगता है वो, 10% ऑन द कस्टम्स ड्यूटी. ठीक है, और इसमें ये याद रखना है कि सरचार्ज इज़ नॉट being shared with the states, or it is a tax on the tax. So it is calculated on the base tax amount. Next है cesses. देखो सेसेस क्या होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेस टैक्स प्लस एनी सरचार्ज. ठीक है, उन दोनों को मिला के उसके ऊपर लगता है सेस. ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स पर्पस, इट इज़ डेजिग्नेटेड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अनलाइक सरचार्जेस. सरचार्जेस में क्या हो रहा था,
जो भी सिर में आ रहा है उसको करने के लिए यूज़ करना था, है ना। बट सेस में देर इज़ ऑलवेज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट इज़ बीइंग कलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल यू हैव रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, जीएसटी कॉम्पनसेशन, इन सब के लिए देर इज़ अ सेस अवेलेबल। ठीक है, सेस विच इज़ बीइंग डिवाइड बाय द गवर्नमेंट। नाउ डेस्टिनेशन क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन typically it is moved to the public account। सो CFI में या पब्लिक अकाउंट में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द फाइनेंस कमीशन कैन नॉट डिक्टेट हाउ द सेसेस आर शेयर्ड विद द स्टेट्स। ठीक है, तो अगेन जैसे सरचार्ज में भी फाइनेंस कमीशन कैन नॉट बी शेयरिंग इट विद द स्टेट, सिमिलरली even in the case of cess, the finance commission cannot dictate how they will be shared with the states। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? वी हैव द GST compensation cess which will be distributed between both the union as well as the state। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सरचार्ज, यूनियन टैक्सेस एंड सेस, है ना। सो इसमें बस ये लर्न करना है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए रहता है, अनलाइक सरचार्जेस, है ना। एंड इट इज़ अप्लाइड ऑन बेस टैक्स प्लस सरचार्ज। ठीक है, फिर CFI में जाएगा या पब्लिक अकाउंट में, और फाइनेंस कमीशन कैन नॉट डिक्टेट ऑन हाउ इट कैन बी यूज्ड, और देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक द GST कॉम्पनसेशन सेस, जिसमें बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इट इज़ बीइंग डिवाइडेड। ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग एट डायरेक्ट टैक्सेस, और उसमें सेस देख रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ठीक है, PMSSN। सो द नेम इट सेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन दिस केस। देखो ये कितना होता है, देर इज 4% का सेस है ये, एंड इट इज़ बीइंग लिवाइड ऑन डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम, कॉरपोरेशन टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें दिस इज़ अ नॉन लैप्सिबल फंड, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखो किस चीज़ के लिए? स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, है ना। तो ऐसे हिंदी में देयर इज अ सेइंग कि आप 4 पैसे अपने हेल्थ के लिए तो रखेंगे ही, है ना। अपनी स्वास्थ्य के लिए 4 पैसे रखने चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जमा करके रखने चाहिए। ठीक है, तो 4 पैसे से यू कैन रिमेंबर 4%। ठीक है, तो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर, स्वास्थ्य के लिए जमा करके रखने चाहिए। ठीक है, और नॉन लैप्सिबल फंड है। नॉन लैप्सिबल मतलब क्या होगा? इट विल कंटिन्यू इवन इफ द गवर्नमेंट इज अनेबल टू यूज द अमाउंट ऑफ फंड्स प्रेजेंट इन दिस फंड, इट विल नॉट गेट लैप्स्ड, और इसमें जितना भी पैसा बचा है उसमें और ऐड हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर इज ओवर इसके पैसे हटा देंगे पूरा, इट विल बिकम ज़ीरो एंड देन अगेन अ न्यू अमाउंट ऑफ मनी विल बी गिवन। नो, दैट विल नॉट बी हैपनिंग। इसमें जितना पैसा रहेगा इट विल स्टे देयर एंड मोर मनी विल बी added to it। ठीक है, सो दिस इज अ नॉन लैप्सिबल फंड। सो सिंस स्वास्थ्य से रिलेटेड है, सो इट इज नॉन लैप्सिबल। ठीक है, बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर, दैट इज वाई नॉन लैप्सिबल फंड दिया है इनको। देन दिस फंड रिसीव्स रेवेन्यू फ्रॉम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, और पब्लिक अकाउंट के अंडर आता है ये, है ना। सो दिस इंटायर थिंग इज इम्पोर्टेंट। नाउ पर्पस क्या है? द फंड्स आर एलोकेटेड टू द हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष्मान भारत योजना, है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑल ऑफ दिस, तो इसका मनी गोस्ट इनटू दैट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को भी फंड करता है ये। देन यू हैव नेशनल हेल्थ मिशन, उसमें भी, एंड हेल्थ इमरजेंसीज के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि।
नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट डायरेक्ट टैक्सेस, उसमें कॉरपोरेशन टैक्स को देख लेते हैं। ठीक है, सो कॉरपोरेशन टैक्स या कॉरपोरेट इनकम टैक्स क्या रहेगा? इट इज़ रेफरिंग टू अ टैक्स ऑन द कंपनीज प्रॉफिट्स एंड इट इज़ गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, सो इट इज़ टैक्स ऑन गवर्न कंपनीज प्रॉफिट्स। और इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? ईयर इनकम टैक्स एक्ट का देखो, एक तो आई है और यहाँ पे भी वन एंड आई आर सिमिलर। ठीक है, वैसे कर सकते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दैट, देखो 1951 में इलेक्शंस टुक प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना? इलेक्शंस सबसे पहली बार 1951 में हुआ था। ठीक है, सो दैट इज़ व्हेन द गवर्नमेंट वाज फर्स्ट ऑफिशियली फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना? सो उसी के 10 साल बाद में दे स्टार्टेड, ऐसे बस ये लर्न करने के लिए कि उन्होंने दे केम अप विद अ प्रॉपर लॉ फॉर इनकम टैक्सेस। ठीक है, तो 10 साल बाद ही जब प्रॉपर टाइप इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, उसके 10 साल बाद दे केम अप विद अ लॉ टू लीवाई इनकम टैक्सेस। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट कब आया? 1961 में। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर द ईयर, है ना? अभी विल बी लुकिंग एट द टैक्स रेट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जो न्यू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, विच हैव बीन रजिस्टर्ड आफ्टर 2019, 10 जनवरी 2019, उन पे कितना लगेगा? देयर विल बी अ 15% टैक्स, फिर 10% सरचार्ज रहेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। ठीक है, सो टोटल इट कम्स आउट टू बी अराउंड 17.16%। ठीक है, तो 15% टैक्स, फिर उतना जो बेस टैक्स रेट है उसके ऊपर लगेगा 10% का सरचार्ज। ठीक है, फिर ये इन दोनों को कंबाइन करके जितना भी बनेगा उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग रहा है। ठीक है, सो इफ़ यू कंबाइन ऑल ऑफ दीज द नंबर कम्स आउट टू बी 17.16%। ठीक है, सिमिलरली देन देर आर अदर इंडियन कंपनीज, उनमें कितना लगेगा? 22% टैक्स लगेगा, 10% सर्च द सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी कॉमन फॉर बोथ, है ना? हाउएवर द टैक्स रेट विल बी हायर इन द केस ऑफ अदर कंपनीज। जो न्यू कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा कम टैक्स लगा रहे हैं बिकॉज दे आर न्यू। ठीक है, नेचुरली दे आर न्यू, देयरफॉर दे विल बी गिवन अ बूस्ट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनिशियली कम टैक्सेस लगा रहे हैं उन पे। सरचार्ज और सेस रिमेन्स द सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, और अदर कंपनीज पे कितना लगता है? 22% लग जाता है, मतलब दैट इज़ अराउंड 20%, है ना? तो 20% कितना हो जाएगा? 20 दैट इज़ 1/5 ऑफ देयर इनकम इज गोइंग इन टू टैक्सेज। बट इफ़ यू लुक एट ये वाला मेट्रिक, मतलब सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन से ऐड करके 1/4 ऑफ द इंटायर इनकम ऑफ अ कंपनी, इंडियन कंपनी विल बी गोइंग इन टू टैक्सेस। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि 25% तो पूरा टैक्स में ही जा रहा है, वेराज जो न्यू कंपनीज थी उनका कितना? 17%, मतलब कितना हो गया? वही 20 के आसपास मान लो, मतलब 1/5 अमाउंट जा रहा था टैक्सेस में। ठीक है, लेस दैन 1/5 अमाउंट इज गोइंग इनटू टैक्सेस। now we'll be looking at foreign companies. फॉरेन कंपनीज में नेचुरली द टैक्सेस विल बी हायर। ठीक है, सो कितना बनता है? इट कम्स आउट टू बी 35%। ठीक है, सो 35% कितना हो जाएगा? इट इज़ क्लोज टू 33.33, मतलब कि मोर देन 1/3 of the money which they earn in India will be levied as taxes। ठीक है, ठीक है, 33.33 इंटू थ्री से आता है 99.99, मतलब 1/3 हो गया, है ना? तो 35% विल बी 1/3, नियरली 1/3 ऑफ द इंटायर प्रॉफिट इज गोइंग इन टू टैक्सेस। फिर है ज़ीरो प्रॉफिट कंपनीज, उनमें कितना टैक्स लगेगा वो देख लेते हैं। इट इज़ ओनली 15% मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स विच इज़ बीइंग लिवाइड। ठीक है, तो ज़ीरो प्रॉफिट कंपनीज में कितना लगेगा? 15% टैक्स लगेगा। सो इट इज़ द लोएस्ट व्हेन इट कम्स टू ज़ीरो प्रॉफिट कंपनीज। और फिर भी उनमें कितना लग रहा है? 15% लग रहा है एंड दिस टैक्स इज नोन एज द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है,
This you need to remember properly. Next, we'll be looking at minimum alternate tax. So, the purpose of minimum alternate tax is to prevent companies with profits from avoiding corporate tax through deductions and exemptions. क्या करते हैं कंपनीज ने दे शो themselves as zero profit companies. ठीक है, कुछ भी they might manipulate the balance sheets in such a manner that they are shown as zero profit companies, and then उन पे effectively no tax should be levied. So that is why, in order to prevent that from happening, गवर्नमेंट केम अप विद द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि नो मैटर व्हाट योर प्रॉफिट इज, एटलीस्ट 15% का मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स विल बी अप्लाइड. ठीक है, सो यहाँ पे वही दिया है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट 1996. ठीक है, at 18.5% on the book profits of ज़ीरो टैक्स कंपनीज. तो जो भी बुक प्रॉफिट रहेगी उस भी कंपनी का, ऑन दैट इट विल बी लिवाइड. ठीक है, अभी क्या रेट है, अभी इट इज़ 15%. ठीक है, एंड this alternate similar thing exists for cooperative societies as well. So minimum alternate tax, that is MAT, it is applicable to companies, whereas alternative minimum tax, that is applicable to cooperative societies, and it is also 15%. ठीक है, तो both of these you should remember, minimum alternate tax and alternative minimum tax. ठीक है, पर्पस भी इसका क्या है, टू प्रिवेंट कंपनीज विद प्रॉफिट्स फ्रॉम अवॉइडिंग कॉर्पोरेट टैक्स थ्रू डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन स्टार्टअप्स. सो स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एनी कंपनी विच इज़ लेस दैन 10 years old. ठीक है, it has a turnover of less than 100 crores and it is engaged in innovation. ठीक है, that will be known as a startup. So you need to remember the, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि स्टार्टअप का मीनिंग क्या है. 10 साल से कम पहले बना हो वो वाला कंपनी. The turnover should also be less, it should be lesser than 100 crores and it should be engaged in innovation. ठीक है, सो टैक्स बेनिफिट कितना रहेगा इनके लिए, 100% profit deduction will be done for 3 years within the first 10 years of the incorporation. So once there is a startup, it will be getting a tax holiday of nearly 3 years. ठीक है, so that you need to remember, कितने साल का टैक्स हॉलीडे है, 3 साल का. there will be 100% deduction, there won't be any taxes levied on them. ठीक है, देन वी हैव टू सी एंजल टैक्स ऑन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, तो पहले इट यूज टू बी देयर बट इट हैज़ बीन डिलीटेड बाय 2024 बजट. सो व्हेन एन एंजल इन्वेस्टर के बारे में वी हैड स्टडीड इन प्रीवियस वीडियोस. तो उसमें क्या होता है, बेसिकली इट इज़ एनी इंडिविजुअल हु इज़ इंटरेस्टेड इन सम एक्टिविटी, कोई भी कंपनी में ही इज़ इंटरेस्टेड एंड ही इन्वेस्ट्स मनी इन दैट कंपनी. ठीक है, तो यूजुअली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं रिच लोग, है ना, ये है रिच पर्सन एंड दे हैव इन्वेस्टेड सम मनी इन सम स्टार्टअप. ठीक है, दैट इज़ नोन एज एन एंजल इन्वेस्टर, ही इज़ एन एंजल इन्वेस्टर. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इनका, रतन टाटा वॉज एन एंजल इन्वेस्टर फॉर दिस कंपनी नोन एज पेपर फ्राई या कोई और नाम है उसका, मेरे को याद नहीं. इट इज़ अ कंपनी ऑन फर्नीचर के लिए, अर्बन, हाँ मेरे को याद नहीं है, शायद अर्बन लैडर ऐसा करके कुछ है. ठीक है, सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंजल इन्वेस्टर. ठीक है, so when an angel investor invests in startup not registered with DPIIT, then the startup will have to pay corporation tax on the profit. ठीक है, additionally they'll have to pay 30% angel tax on the investment which was received.
ठीक है, हाउ एवर दिस टैक्स हैज़ बीन अबॉलिश्ड इन बजट 2024। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन। क्या क्या है इसमें, अगर DPIIT में it is not registered, that startup is not registered, then it will have to pay a corporation tax on the profit, and on top of that it will also have to pay 30% का angel tax on the investment received। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होगे ज़्यादातर जगहों पे थ्री थ्री के मल्टीपल्स यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे थ्री थ्री ईयर्स का टैक्स हॉलीडे दिया था, सिमिलरली यहाँ पे 30% इज द टैक्स लिवाइड एंजल टैक्स, है ना। तो ऐसे ये बस याद करने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट इक्वलाइजेशन लेवाई और गूगल टैक्स, एंड इट हैज़ बीन अबॉलिश्ड नाउ। सो द इक्वलाइजेशन लेवाई या गूगल टैक्स जिसको बोलते हैं, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। ठीक है, 2016 का फाइनेंस एक्ट था, उसके अंदर लाए थे इसको। a, a equalization levy of 2 to 6% was levied on digital ads। सो जो फेसबुक गूगल इन सब के जो भी एड्स होते हैं ना, एडवर्टीजमेंट्स, उन पे लिवाई करा था, एंड इवन फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज के एड्स पे भी। ठीक है, सो कॉर्पोरेट टैक्स वाज अप्लाइड ऑन द प्रॉफिट अंडर इनकम टैक्स 1961। देखो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। असली में क्या होता था, जैसे गूगल की साइट है, ये वेबसाइट है ना। गूगल नहीं, आप सोचो फेसबुक है ये सपोज। ठीक है, फेसबुक में यहाँ पे आपने देखा होगा देर आर सम एड्स प्रेजेंट। ठीक है, एड्स प्रेजेंट है और इनको देख के समटाइम्स वी क्लिक ऑन दोज एड्स एज वेल। ठीक है, वंस वी क्लिक ऑन दोज एड्स, देन क्या होता है, Facebook will be receiving some amount of commission by the advertising company। क्योंकि क्या हुआ है, फेसबुक के यूज़र ने ऐड पे क्लिक करा है ना, ऐड पे क्लिक करके वो दूसरे वेबसाइट पे गया है, दैट इज़ वाई दैट वेबसाइट विल बी पेइंग सम कमीशन टू फेसबुक। ठीक है, तो ये चलता था, बट नाउ द गवर्नमेंट सेड कि ये जो यूज़र है, देखो इस पे कोई भी इंडिया का टैक्स नहीं लग रहा था, इवन दो द कस्टमर, द पर्सन हु वाज क्लिकिंग ऑन दोज एड वाज इंडियन, है ना। हम घर पे बैठ के क्लिक कर रहे हैं, बट फिर भी इंडिया को कुछ भी इंडियन गवर्नमेंट को कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, नो टैक्सेस वर बीइंग गिवन टू द गवर्नमेंट। सो दैट इज़ व्हेन इक्वलाइजेशन लीवाई या गूगल टैक्स वाज ब्रॉट इन। ठीक है, सो वही डिजिटल एड्स पे 2 to 6% ऑफ इक्वलाइजेशन लीवाई वाज अप्लाइड। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। हाउएवर दिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड। ठीक है, और इसको आप लर्न कैसे करोगे कि इक्वलाइजेशन गूगल टैक्स से तो आपको समझ आ जाएगा कि गूगल एड्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। और लीवाई, लीवाई को आप उससे लिंक कर लो, लीवाइस की जीन्स होती है ना, तो आप ऐसे करो कि गूगल मैंने खोला और लीवाइस की जीन्स का ऐड आया हुआ है उसमें। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि इक्वलाइजेशन लीवाई और गूगल टैक्स, दे आर द सेम थिंग एंड दे हैव बीन अबॉलिश्ड। ठीक है, now we'll be talking about dividend distribution tax। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में क्या, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, है ना। इसमें क्या हुआ, द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स, डिविडेंड कब देते हैं, if you have a share of a particular company and that company earns some profit, then a portion of that profit will be given to you the shareholder in the form of dividends। ठीक है, उसको बोलते हैं। सो क्या करा उन्होंने 1997 में, पी चिदम्बरम जी ही सजेस्टेड दैट ये जो डिविडेंड्स मिल रहे हैं लोगों को, दे शुड ऑल्सो बी टैक्सड। ठीक है, सो दे levied taxes on dividend income at a rate of 15% plus cess plus surcharge. So effectively it became 20%. That means 1/5 of the money earned as dividend will be given to the government as taxes। ठीक है, तो ये था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स।
and the shareholders were exempted from paying a separate income tax on the dividends. ठीक है. However, this tax was abolished in 2020 और उनको क्या करा उन्होंने, जो डिविडेंड्स थे उनको they were made taxable under the income tax bracket. ठीक है. तो मतलब एक साइड से तो ले ही रहे हैं टैक्स, पहले इस साइड से ले रहे थे, अब दूसरी साइड से ले रहे हैं. ठीक है. सो बस यही है. नाउ बेनिफिट क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस का. There is a lower tax burden for lower income shareholders. ठीक है. So it will be according to the income tax bracket in which they fall. ठीक है. Then there's increased disposable income for shareholders. So you just need to remember this. Okay, dividend income tax was introduced in 1997 है ना. It used to come around 20% or so, but later on it was removed और the dividend was brought under, मतलब income earned from dividend was brought under income taxes. ठीक है. बस इतना ही हुआ है इसमें. ईयर कैसे याद रखोगे आप. 1996 1997. देखो 1997 में क्या हुआ था. 1996 में असली में क्या हुआ था. देयर वाज अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट आई थी 13 डेज के लिए सेंटर में. इट वाज लेड बाय Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji. However, it was not able to prove its majority on the floor of the house and that is why it was removed. ठीक है. सो इस इंस्टेबिलिटी के अगले साल ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स केम इनटू बीइंग. ठीक है. सो व्हाई हैव आई टोल्ड दिस, बिकॉज इफ़ यू मेक सर्टन कनेक्शंस लाइक दिस ना, सो इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर फॉर यू. ठीक है. तो वैसे करके लर्न कर सकते हो. अगर ऐसे नहीं हो रहा है सो आई विल टेल यू एन ईजियर मेथड. देखो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DDT, है ना. और कितना ईयर क्या है 1997. सो ये जो 99 है ये डी इन्वर्टेड डी जैसा दिख रहा है ना, और जो 7 है वो हाफ ऑफ टी जैसा दिखता है. ठीक है. तो वैसे लर्न हो जाएगा DDT. ठीक है. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. नेक्स्ट विल बी लुकिंग एट बाय बैक टैक्स. सो बाय बैक टैक्स क्या है. The buyback tax is a tax on companies that repurchase their own shares. So, for example, company feels कि उसको ज़्यादा portion of the shares it requires, then it will be purchasing their own shares from the open market. ठीक है. स्टॉक एक्सचेंज में वो अपना खुद का शेयर्स खरीद लेंगे. ठीक है. एंड दिस इज एम्ड एट डिस्करेजिंग. नहीं, ठीक है, इतना हो गया. सो इस पे द गवर्नमेंट हैज़ पुट अ टैक्स ऑन दिस एज वेल. उसको बोलते हैं बाय बैक टैक्स. और क्यों लगाया है. इन ऑर्डर टू डिस्करेज बाय बैक्स एंड इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस ग्रोथ एंड और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. मतलब क्या है. इफ़ अ कंपनी बाइज बैक्स इट्स शेयर्स देन इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी ओवरऑल, क्योंकि फिर ग्रोथ वगैरह रुक जाएगा, है ना. तो इन ऑर्डर टू डिस्करेज दैट this buyback tax has been levied. ठीक है. So for example, the United States had introduced a 1% buyback tax in 2022 to reduce excessive buybacks and promote reinvestment in the economy. So companies like Apple, who are known for large buybacks, could face higher costs under such a tax. ठीक है. तो ओवरऑल वो जो बायबैक कर रहे थे शेयर्स को, उसको अवॉइड कर, उसको डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए या डिस्करेज करने के लिए है ये. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स. सो कैपिटल गेन्स टैक्स क्या रहेगा. इट विल बी अ टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स फ्रॉम सेलिंग कैपिटल एसेट्स लाइक लैंड, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, स्टॉक्स एक्सेट्रा. ठीक है. कोई भी किसी ने कैपिटल एसेट अगर सेल किया, जैसे ये लैंड प्रॉपर्टी, उस पर जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है दैट इज़ नोन एज द कैपिटल टैक्स. ठीक है. टाइप्स क्या क्या हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल टैक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कैपिटल गेन्स टैक्स.
I'm sorry, the short term capital gains tax, and then we have the long term capital gains tax. ठीक है. So जो short term capital gains tax है, it will apply to assets which are held for a shorter period of time, whereas the long term capital gains tax will apply to assets which have been held for a longer period of time. ठीक है, बस इतना ही है इसमें. टाइम फ्रेम क्या है, वही देखो, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब के लिए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का टाइम पीरियड है, इट हैज़ टू बी, अगर 1 ईयर के अंदर अंदर इफ़ यू बॉट अ शेयर एंड देन सोल्ड इट बैक, देन दैट विल बी एप्लीकेट, मतलब दैट विल बी short term gains tax can be applied to that. Short term capital gains tax can be applied to that. Whereas अगर 12 महीने के बाद सेल करा है, then long term capital gains tax will apply. Now when it comes to other assets like property etc., उसके लिए देयर इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years. ठीक है. सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कब लगेगा, इफ़ यू हैव सोल्ड इट, इफ़ यू हैव बॉट एंड सोल्ड इट विद इन 2 years. और अगर 2 साल से ज़्यादा हो गया, देन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कम्स इन टू प्ले. ठीक है. इम्पॉर्टेंट क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स अप्लाइज एंड नॉट बोथ ऑफ देम डू नॉट अप्लाई. ठीक है. तो both SCGT or LCGT together will not be applied, but only one type of capital gains tax will be applied at one time. ठीक है. सो ये वैसे नॉर्मल चीज़ बताइए इधर. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द ईयर्स कि क्या होगा. शेयर्स और म्यूचुअल फंड में 1 साल का टाइम पीरियड रहेगा, 1 ईयर. और जो थोड़ा दूसरा प्रॉपर्टी रहेगा, दूसरा जो भी कैपिटल रहेगा, जैसे कि यू हैव होम्स, एनी अदर प्रॉपर्टी, लैंड और ज्वेलरी. ठीक है. ये सब चीज़ों में 2 साल का टाइम लिमिट है. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग. देखो, शेयर्स को खरीदना और बेचना इज़ रिलेटिवली सिंपलर. ठीक है. तो उस पर एक विद इन 1 ईयर से ही लगाना शुरू कर देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स. वेराज हाँ, जो दूसरी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी, हाउस, ये सब चीज़ें दे आर रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू सेल. ठीक है. दैट इज़ वाई 2 साल के बाद में उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाना शुरू करते हैं. ठीक है. ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस. नेक्स्ट वी हैव वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. सो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की एग्जांपल्स क्या हैं, वो एक बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, ये सब चीज़ें, NFT, दैट इज़ नॉन फंजिबल टोकन्स. ठीक है. ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. नाउ आफ्टर बजट 2022, इवन these have been brought under the tax bracket. ठीक है. तो इनको भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा इनके प्रॉफिट पे. इनके सेल पे अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, इवन दैट विल बी एलिजिबल फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स. ठीक है. कितना लगेगा, 30% कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम बिटकॉइन, NFTs और अदर virtual digital assets. ठीक है. So again, this is also very important. And on top of that, 1% tax deduction at source will also be applicable on the trade or transfer of virtual digital assets. ठीक है. तो 1% तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो गया, एंड उसके अलावा 30% विल बी वो CGT. ठीक है. नेक्स्ट है CGT ऑन शेयर मार्केट प्रॉफिट इन बजट 2024. सो ये बजट 24 का डेटा है. दिस इज़, यू जस्ट गो थ्रू दिस वंस, इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. ठीक है. तो इसमें क्या दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का पहले क्या रेट था, 15% था. नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 20%. सो CGT ऑन शेयर मार्केट्स प्रॉफिट्स. ठीक है. और सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कितना था, इट वॉज 10% फॉर शेयर मार्केट, वेराज अभी इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 12.5%. ठीक है.
सो डू ट्राई टू रिमेंबर द फिगर्स। 15 से 10 हो गया और 20 से 12.5 हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली, हाँ, इसको लर्न करने के लिए कुछ लिंक बना देती हूँ मैं। यहाँ 20 का हाफ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 15 का हाफ। हाफ तो नहीं हुआ है, मतलब 5 का हाफ हो गया इसमें। ठीक है, तो पहले कितना रेट था? 15% था शॉर्ट टर्म का। नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 20%। ठीक है, सो द टैक्सेस हैव बीन इंक्रीज्ड नाउ। जो पहले लॉन्ग टर्म 10% ही था, अभी इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 12.5%। ठीक है, तो ये ऐसे मत करो, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 5% बढ़ाया है, एंड यहाँ से यहाँ तक 2.5% बढ़ा दिया है, दैट इज़ द हाफ। ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दीज टू एटलीस्ट, कि कितना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर मार्केट प्रॉफिट, दैट इज़ 1/5 ऑफ द प्रॉफिट अर्नड, है ना। 1/5 उसका तो उसी में टैक्स में चले जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और इफ़ वी वेट फॉर सम लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब 1 साल से ज़्यादा वेट करा, तब कितना हो रहेगा? 12.5। 12.5 इज सिमिलर टू, इसको आप 10% मान लो, है ना, लर्न करने के लिए बता रही हूँ बस मैं। तो 10% कितना हो जाएगा? 10/100, मतलब कि 1/10 ही लगेगा। 1/10 ऑफ द इंटायर प्रॉफिट विल बी गोइंग टू द टैक्सेस। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर दिस, कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दे रहे हैं हम लोग, तो 1/5 ऑफ दैट विल, 1/5 ऑफ द प्रॉफिट विल गो टू टैक्सेस। और अगर लॉन्ग टर्म वाला दे रहे हैं, देन ओनली 1/10 ऑफ द इंटायर प्रॉफिट विल बी गोइंग टू टैक्सेस। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। नेक्स्ट है रीजंस फॉर द टैक्स इंक्रीजेस। सो क्यों वो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, टू हैव फंड्स फॉर वेलफेयर स्कीम्स, टू प्रिवेंट ओवर फाइनेंशियलाइजेशन, मतलब एक्सेसिव फाइनेंशियल स्पेकुलेशन करने लग जाते हैं शेयर मार्केट में जा जाके लोग। सो इन ऑर्डर टू कर्ब दैट ऑल्सो दिस हैज़ बीन इंक्रीज। देन इन ऑर्डर टू रिड्यूस मार्केट वोलेटिलिटी, बिकॉज क्या होगा, शॉर्ट टर्म में तो टैक्स ज़्यादा लग रहा है, 20% लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म में 12.5% लग रहा है। ठीक है, सो पीपल विल प्रेफर टू होल्ड शेयर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस वॉलेटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है सीजीटी का इंडेक्सेशन बेनिफिट एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, सीआईआई। सो इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है? इट एडजस्ट्स प्रॉफिट फॉर इन्फ्लेशन, reducing long-term capital gains tax liability. Therefore, it is not applicable to short-term capital gains tax. तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी प्रॉफिट आएगा ना, दैट विल ऑल्सो बी एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन। क्यों? देखो, इन्फ्लेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, है ना। उसके साथ में देर इज सम प्रॉफिट विच यू विल बी गेटिंग, है ना। पर इसके साथ अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, इफ देर इज इंक्रीज इन्फ्लेशन, देन ये प्रॉफिट हमको और ज़्यादा बड़ा दिखेगा। ठीक है, और प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा दिखेगा, देन द परसेंटेज ऑफ टैक्स विच विल बी लीवाइड ऑन दैट विल बी ऑल्सो मोर हायर। ठीक है, ये पूरे चीज़ पे ही टैक्स लग जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर द पर्सन पेइंग टैक्सेस। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इंडेक्सेशन इज डन। इंडेक्सेशन बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, wherein there is an adjustment made for कि प्रॉफिट और इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करते हैं, ताकि extra tax does not have to be paid. ठीक है, so this is important, you need to remember this. I'll just highlight this properly. ठीक है, it is not, also you need to remember कि this is not applicable for short term capital gains tax. ठीक है, फिर इंडेक्सेशन के चेंजेस क्या हैं? देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में क्यों नहीं एप्लीकेबल है? बिकॉज दे वांट टू प्रमोट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ओवर शॉर्ट टर्म। उनको चाहिए कि लोग, मार्केट वोलेटिलिटी कम हो, और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा लोग बेचें ना स्टॉक्स को, शेयर्स को। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, उसी में ज़्यादा चीज़ें, बेटर चीज़ें आर प्रोवाइडेड। फॉर एग्जांपल, द रेट इज़ ऑल्सो लोअर। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट दे इंडेक्सेशन will also be done. ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट will also be provided.
ठीक है, तो यही है रीज़न कि मार्केट वोलेटिलिटी कम करना है, दैट इज़ वाई दे वांट टू इंसेंटिवाइज लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑफ शेयर्स. Long term holding of shares is being promoted here. ठीक है, next we'll look at indexation changes. So सबसे पहले we have debt mutual funds. देखो डेट और जो डेट म्यूचुअल फंड्स में है, इनिशियली इंडेक्सेशन बेनिफिट वाज अवेलेबल, हाउएवर नाउ देयर इज़ नो इंडेक्सेशन बेनिफिट व्हेन इट कम्स टू डेट म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयरफॉर डेट म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलता है. नॉर्मल शेयर्स और बॉन्ड्स में भी देयर इज़ नो इंडेक्सेशन बेनिफिट. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में मिलता है इंडेक्सेशन बेनिफिट. ठीक है, देन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में देर इज़ नो इंडेक्सेशन बेनिफिट. ठीक है, इसमें भी नहीं है. और फिर रियल एस्टेट में भी मिलता है. ठीक है, सो देर आर ओनली टू थिंग्स वेर इन यू विल बी गेटिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, दैट इज रियल एस्टेट एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. ठीक है, ओनली इन दोनों में ही इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली द प्रॉफिट हैज़ बीन एडजस्टेड सो दैट द इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट, इट डज नॉट बिकम वेरी हाई. ठीक है, इंटरेस्ट रेट नहीं, टैक्सेशन रेट डज नॉट बिकम वेरी हाई. ठीक है, तो एज यू कैन सी फ्रॉम हियर जो भी फिजिकल एसेट्स हैं लाइक रियल एस्टेट एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, उसमें देयर द इंडेक्सेशन बेनिफिट रिमेन्स. ठीक है, next, we look at income tax on individuals and the tax slabs which exist. So, you should just have a general idea of what these are. Exact इतना याद नहीं होना चाहिए, मतलब इतना it is not very important. We'll just look at this once. So, जो न्यू टैक्स रेट्स आए हैं 2025-26 के लिए, उनको देख रहे हैं. सो फ्रॉम 0 to 3 लाख रुपीज़ कितना है, 0% है. अभी भी 0% है, बट द लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज टू 4 लाख रुपीज़. सो इफ़ यू अर्न बिटवीन 0 to 4 लाख रुपीज़ यू वॉन्ट बी पेइंग एनी टैक्स, इनकम टैक्स. ठीक है, देन अगर 3 लाख से 6 लाख था पहले, देन द टैक्स रेट वॉज 5%. वेराज अभी कहाँ से कहाँ तक है, 4 लाख to 6 लाख के लिए द टैक्स रेट विल बी 5%. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 6 लाख to 9 lakhs. कितना रहेगा, पहले 10% था, अभी 8 लाख to 12 lakhs. देखिए, मैं यहाँ पे न्यू लिमिट्स लिख देती हूँ बेसिकली. यहाँ पे कितना रहेगा, 0 to 4 lakhs. ठीक है, उसके बाद में रहेगा 4 लाख to 8 लाख. देन यहाँ पे 8 lakhs to 12 lakhs. देन 12 लाख to 20 लाख. ठीक है, फिर 20 lakhs तक वही हो गया है ना, और 12, हाँ उतना ही हो गया. और उसके बाद में आ जाएगा 20 to 24 लाख एंड देन अबव 24 लाख. ठीक है, ये अबव 24 है. यहाँ पे देयर सम कंफ्यूजन, आई विल जस्ट चेक दिस एंड लेट यू नो, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बस आपको पता होना चाहिए कि कितना 4 में इट इज़ इंक्रीजिंग, है ना. और अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है ये, 5% के टर्म्स में द टैक्स स्लैब्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है, तो आई जस्ट चेक कि देयर सम प्रॉब्लम हियर, न्यू टैक्स रेजिम स्लैब्स. तो इतना याद, डू नॉट रिमेंबर द टैक्स स्लैब्स एज सच, बस ट्राई टू रिमेंबर कि टैक्स रेट कितने कितने से इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, 5% से. ठीक है, 5% से इंक्रीज़ हो रहा है. एंड मैक्सिमम कितना है फॉर द रिचेस्ट पर्सन, मतलब द वन हु इज़ अर्निंग द मोस्ट, 30% टैक्स लगेगा उनका. दैट मीन्स अराउंड
नियरली वन थर्ड ऑफ देयर इनकम विल बी गोइंग टूवर्ड्स टैक्सेस। ठीक है, क्योंकि 30 से 33% तो वन थर्ड हो गया है ना, तो वन थर्ड ऑफ देयर इनकम गोज टू टैक्सेस। जो रिच रहेगा ना सबसे, द वन हु बी अर्निंग द मोस्ट, उनके लिए। ठीक है, तो बस इतना याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में। देर आर सम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स, सो वील बी लुकिंग एट दोज राइट नाउ। ठीक है, so सबसे पहले है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या रहेगा, इट इज़ एनी इनकम, देखो इनकम टैक्स इज लीवाइड बाय यूनियन गवर्नमेंट है ना, इट अप्लाइज टू टैक्सेबल इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स। ठीक है, प्रिजम्पटिव प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या होगा, इट इज़ अ मेथड फॉर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, जिनका अपना खुद का शॉप है या अपना खुद का, दे आर अर्निंग मनी, they are not employed anywhere, they are not doing a job, but they have their own thing going on, उनके लिए there is a method for calculating the income tax and that is known as presumptive taxation। ठीक है, तो बस इतना आपको you should be knowing कि क्या क्या होता है presumptive taxation। it refers to an a method for self employed professionals to calculate their income tax। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ ये पता होना चाहिए कि, हाँ वो तो वैसे पता है कि यूनियन गवर्नमेंट लगाती है इनकम टैक्स। फिर प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, इट इज़ लीवाइड बाय द यूनियन गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, एंड इट अप्लाइज टू प्रोफेशनल्स हु आर नॉट फार्मर्स। और कितना होता है, द टैक्स लिमिट इज 2500 रुपीज़। सो वी हैड ऑलरेडी लर्न दिस अबाउ ऑल्सो है ना, पहले भी पढ़ा था इसके बारे में। वही दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑफ 2500 इज प्रेजेंट ऑन प्रोफेशनल टैक्सेस एंड इट इज़ अ सेपरेट टैक्स फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, दिस मच यू शुड बी नोइंग। नेक्स्ट वील लुक एट एडवांस टैक्सेस। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है, फाइनेंशियल ईयर April 1 से March 31 तक रहता है, यू माइट बी नोइंग है ना, तो उसमें आता है ये। सो प्रॉब्लम क्या है, ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, देन गवर्नमेंट विल हैव टू फेस अ ईयर लॉन्ग कैश फ्लो शॉर्टेज। क्या कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट टैक्सेस को दे कैन बी पेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि March 30 या लास्ट वीक ऑफ मार्च में ऐसा कर सकते हैं लोग कि दे विल बी पेइंग ऑल ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। बट इससे क्या होगा, द गवर्नमेंट विल नॉट बी अर्निंग एनी रेवेन्यू थ्रू आउट द ईयर, बस लास्ट में जाके दे विल गेट रेवेन्यू। ठीक है, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट इज वाई अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स वाज ब्रॉट इन, वेयर इन एडवांस टैक्स में क्या होगा, इट विल रिक्वायर द टैक्स पेयर्स with an annual tax liability of 10,000 rupees or more to pay income tax and corporation tax in quarterly installments। ठीक है, पहले से ही every 4 months they'll have to नहीं, every 3 months they'll have to pay income tax and corporation tax as well। ठीक है, this is known as advance tax। ठीक है, benefit क्या है, it will ensure a steady flow of revenue for the government throughout the year। ठीक है, सो अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा का अगर यू हैव अ टैक्स लाइबिलिटी देन यू आर एलिजिबल फॉर एडवांस टैक्सेस। ठीक है, और उसमें क्या है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में 4 टाइम्स, मतलब 4 बार देना पड़ेगा ये। ठीक है, विद इन 1 ईयर। नाउ वी विल बी लुकिंग एट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या रहता है, इसमें क्या होगा, द नेम्स देमसेल्व्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, मतलब सोर्स पे ही अगर टैक्स कलेक्ट डिडक्ट कर लिया देन दैट इज नोन एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और अगर सोर्स पे ही कलेक्ट कर लिया है दैट इज नोन एज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। टीडीएस में क्या रहेगा, द कलेक्टर विल बी द बायर ऑफ गुड्स सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एक्शन क्या रहेगा, दे विल डिडक्ट द टैक्स बिफोर मेकिंग अ पेमेंट टू द सेलर और इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ यूनिवर्सिटी इज पेइंग सैलरी टू अ प्रोफेसर, वो क्या करेंगे, जो प्रोफेसर का जो टैक्स बन रहा है ना, दे विल डिडक्ट इट एंड देन गिव द सैलरी टू द प्रोफेसर।
ठीक है, दिस इज नोन एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल। उसके इट विल अप्लाई टू एम्प्लॉय सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिविडेंड पेमेंट्स। ठीक है, ऑल ऑफ दीज विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, नाउ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में क्या रहेगा? द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, they will be the one who will be collecting the tax from the customer at the point of sale। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ समवन गोज टू बाय अ लग्जरी कार, तो क्या करेंगे? वो जो लग्जरी कार सेल्समैन होगा ना, दैट पर्सन विल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मी। ठीक है, दैट विल बी नोन एज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और अगर वो नहीं बन रहा है टैक्स, तो आई हैव टू फाइल अ रिटर्न एंड देन आई गेट दैट मनी बैक। ठीक है, सो सो कस्टमर्स बाइंग स्पेसिफिक गुड्स, सर्विसेज और फॉरेन करेंसीज, उन पे लगता है इफेक्ट। क्या? इट विल हेल्प ट्रैक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस एंड इनकरेज इनकम टैक्स कंप्लायंस। ठीक है, तो वही है ये। बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर, दीज नेम्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, यू शुड बी नोइंग दिस। तो इसमें क्या हो रहा है? एक तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहाँ जैसे सैलरी वगैरह दे रहे हैं तब इट इज़ डिडक्टेड। या कलेक्टेड एट सोर्स में क्या होगा? द कस्टमर हु कम्स, दैट पर्सन विल बी पेइंग द टैक्सेस। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सी, सी से आप कस्टमर को याद कर लो कि कस्टमर गया, अम, ये कस्टमर है, ये गया कार खरीदने, है ना? कोई भी कार, जैसे फेरारी टाइप कोई कार खरीदने गया, एंड जो सेल्समैन था उसने ही कलेक्टेड टैक्स फॉर फ्रॉम हिम एट द सोर्स, मतलब कि 1% टैक्स ले लिया उनसे। ठीक है, दैट इज नोन एज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नाउ इसका क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का प्रॉब्लम क्या रहेगा? देखो, सो विदाउट अ system, freelance faculty and depositors could avoid reporting income, thus evading taxes। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है? वही टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। पोर्शन ऑफ द इनकम नहीं, पोर्शन ऑफ द पेमेंट which is to be made to someone, it can be deducted, or the deducted amount will be deposited with the income tax department। ठीक है, along with the recipient's PAN, and this will force the recipient to file a tax return in order to claim the TDS credit। ठीक है, तो ये वही बताया है कि TDS का why has it been implemented। ठीक है, impact क्या है? it will combat tax evasion, it may cause temporary financial hardship for lower income individuals, and the government adjusts the TDS rules in each budget to balance these effects। देखो क्या होता क्या है, सो जैसे फ्रीलांस फैकल्टी है, कोई भी कॉलेज है, ये कॉलेज है ABC कॉलेज, यहाँ पे एक फ्रीलांस फैकल्टी पढ़ाने आ रही है, ये इसका नाम है एक्स। ठीक है, ये पढ़ाने आई है ABC कॉलेज में। सो ABC कॉलेज का मैनेजमेंट क्या है? दे विल हैव टू पे दिस पर्सन फॉर दिस सर्विसेज, है ना? पैसे देना पड़ेगा। However, how do we ensure? How does the government ensure कि ये जो freelance faculty है ये पैसे भरती भी है, sorry, taxes भरती भी है कि नहीं? In order to help ensure that, government has come with this idea of tax reduction at source। मतलब क्या होगा? ये जो ABC कॉलेज है इसको बोल देंगे गवर्नमेंट कि जितना भी इनका इनकम रहेगा, इनको जितना भी पैसा देना रहेगा, उसका कीप एटलीस्ट 2%, कुछ भी ऐसा दिया रहेगा, keep 2% with yourself, and ये 2% this will be deposited in the income tax department। ठीक है, ये ऐसे कर देंगे। फिर जो ये एक्स है, एक्स को अगर ये 2% पैसा वापस चाहिए, देन ही एक्स विल हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, उनके खुद का पूरा इनकम टैक्स का रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। ओनली देन 2% ऑफ दैट मनी विल बी रिटर्न टू एक्स। ठीक है, सो दिस इज अ सेफ गार्ड in order to ensure that no wrongdoing is being done by such people। मतलब
ये लोग टैक्स इवेजन तो नहीं कर रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दिस इंटायर सिस्टम हैज़ बीन बिल्ट. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. उसमें भी वही है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए होगा. So I had already explained this to you. The purpose is to ensure that individuals who are making high value purchases are actually paying income tax. ठीक है. तो उसमें क्या होगा, सेलर जैसे कार शोरूम में दे कलेक्ट एन एडिशनल 1% फ्रॉम द बायर ऑन द परचेज ऑफ दैट कार. This collected amount will be deposited with the income tax department and the buyer will have to file a tax return in order to claim this TCS credit. ठीक है. सेम चीज़ है. जैसे ये गया, ये है एक्स, अभी इसको कार चाहिए, लग्जरी कार. तो ये गोज टू द शोरूम, वहाँ पे ये कार खड़ी है. ठीक है. एंड ये बॉट दिस कार. ठीक है, फ्रॉम द शोरूम. सो नाउ व्हाट डज दिस शोरूम डू? शोरूम विल लिवाई एक्स्ट्रा मनी. मतलब उसका जितना भी फीस रहे, फीस नहीं, जितने की भी कार रहेगी प्लस 1% ऑफ दैट फीस विल बी लिवाइड. This 1% will be given to the tax department, IT department. IT department के पास चले जाएगा. Now if X wants his money back, ये 1% of the जितना भी इसकी प्राइस थी उतना वापस चाहिए इसको, then he'll have to file IT returns, income tax returns. ठीक है. So this is also a safeguard to ensure that he is paying taxes or not. ठीक है. Next we'll be looking at tax refund. सो टैक्स रिफंड या इनकम टैक्स रिफंड कब होता है? व्हेन an individual, when a taxpayer has paid more tax than what he is actually liable for. तो जैसे उनका 10 रुपये टैक्स बन रहा था बट ही हैज़ पेड 15 रुपीज़, देन इन दैट केस a tax refund will be made. ठीक है. For example, if the TDS exceeds the taxpayer's income tax slab, then the excess will be refunded along with interest. Similarly, GST refund क्या होता है? When an entrepreneur can claim GST refunds through GSTN web portal. ठीक है. So it will occur when a business has paid more GST than they are required to do. ठीक है. तो ये रहता है GST refund का सिस्टम प्रिंसिपल. Next, we'll be looking at tax refund of deferred tax assets. देखो, डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होते हैं, वो हमने वी आर रेड अबाउट दीज इन द चैप्टर ऑन वीडियो ऑन बैंकिंग. उसमें क्या होता था कि लोन राइट ऑफ कर देते थे सारे बैंक्स. जो NPAs होते थे ना, आई एम सॉरी, लोन राइट ऑफ नहीं, वहाँ से राइट ऑफ कर देते थे. देखो, बैलेंस शीट से राइट ऑफ, जैसे NPAs होते हैं उनको एसेट साइड से हटा के दे यूज टू बी पुट ऑन द लाइबिलिटी साइड. ठीक है. दिस वाज नोन एज राइटिंग इट ऑफ. ठीक है. तो इस केस में जो इनको डेफर्ड टैक्स एसेट्स का रिफंड मानते थे. ठीक है. बिकॉज दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम एसेट साइड एंड दे हैव बीन मूव्ड टू लाइबिलिटी साइड, है ना, NPAs. ठीक है. सो उनके लिए टैक्स रिफंड देना पड़ता था. The government had to pay a tax refund because they haven't received any money on these NPAs. That is why a tax refund has to be paid by the government and this is known as deferred tax asset. ठीक है. deferred tax asset is a concept associated with tax benefit or tax refund, और इसमें वही इसके बारे में, that is all that you need to remember. ठीक है. कि it is about ये वाला पोर्शन जो हमने पहले पढ़ा था. NPAs को हम लोग एसेट साइड से हटा के लाइबिलिटी साइड में कर देते थे, है ना. उसी पे देयर इज अ टैक्स रिफंड प्रोवाइडेड, उसको डेफर्ड टैक्स एसेट बोलेंगे. नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू सम मिसलेनियस टर्म्स. सो फॉर एग्जांपल वी हैव टोबिन टैक्स और रॉबिनहुड टैक्स का कंसेप्ट देख लेते हैं. ठीक है. टोबिन टैक्स क्या रहेगा? It was originally proposed by the economist James Tobin in 1970s. ठीक है. टोबिन टैक्स
It was proposed by the economist James Tobin in 1970s, and it is a small tax on every currency exchange. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या था? It was primarily aimed at discouraging short-term speculative investments. ठीक है, or reduce capital flight amongst between countries. Then in order to stabilize global economy, currency exchange rate, stock market, इन सब चीज़ों के लिए this Tobin tax was proposed by James Tobin. ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन इसका देखो, इंडिया में जो फॉरेन करेंसी कन्वर्जन्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू जीएसटी. ठीक है, सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ टोबिन टैक्स बीइंग डिवाइड, है ना. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोबिन टैक्स. ठीक है, नाम इसका टोबिन टैक्स नहीं है बट सिमिलर कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड हियर, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज के लिए दे आर लिवाइंग सम टैक्सेस. ठीक है, तो क्यों करते हैं? वही एक्सचेंज रेट नहीं तो ख़राब होते जाएगा इफ़ यू repeatedly exchange currencies. ठीक है, तो in order to avoid that, in order to avoid any speculative investments, all of that, this Tobin tax has been proposed. ठीक है, तो यही है इसमें कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कब लीवाई करेंगे? ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़. ठीक है, तो दिस इज सिंपल. तो शेयर्स, ईटीएफ्स, डेरिवेटिव्स, इनका शेयर या परचेज पे, सेल या परचेज पे दिस विल बी डिवाइड. ठीक है, द रेट्स विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी, है ना. नेक्स्ट है, इट इज़ अ टैक्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट विल अप्लाई टू सेलिंग प्राइसेस ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज. ठीक है, सो इट विल बी अप्लाइंग रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. Okay, it applies regardless of the profit or loss, and it will be applying to the selling price of the shares or whatever you're selling. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. इसमें क्या है? इट इज़ लिवाइड ऑन नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड एट कमोडिटी एक्सचेंजेस. ठीक है, और रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.01%. तो वही यहाँ पे कितना 0.001% था, यहाँ पे 0.01% है. ठीक है, एंड अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनियन टैक्स. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का ही टैक्स है ये. ठीक है, नाउ वी लुक एट सम अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्सेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कैपिटल गेन्स टैक्स. ठीक है, सो इट अप्लाइज टू प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स. फॉर एग्जांपल, ये हमने वैसे ही पढ़ ही लिया है, हमने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग के. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कितना होता है, लॉन्ग टर्म कितना होता है. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न एवरीथिंग. तो दिस यू नीड नॉट स्टडी. ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. वो भी हमने पढ़ लिया है. बस इसमें वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज इट अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस. देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. ठीक है, तो this was applied previously on the dividends which were paid by the companies to shareholders. However, it has been removed and it was abolished in budget 2022. ठीक है, फिर स्टैम्प ड्यूटी. हाँ, ये नहीं पढ़ा हमने अच्छे से. सो स्टैम्प ड्यूटी इज अ टैक्स विच इज लीवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, so it applies to the value of shares, bonds, immovable properties and legal agreements. So it will again apply regardless of profit or loss. ठीक है, 2020 में गवर्नमेंट हैड अमेंडेड द इंडियन स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899 टू स्टैंडर्डाइज द स्टैम्प ड्यूटी रेट्स ऑन शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज एट्सेट्रा. ठीक है, across all states. Now the union collects and distributes it to the state of domicile of the buyer, and इसका implementation has been postponed due to corona की वजह से. I doubt if it has been implemented up till now or not. इसमें क्या होगा? यूनियन विल बी कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स अमंग्स द डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, प्लस दिस विल अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट और लॉस, है ना. एंड इट will apply to the values of shares, bonds, other immovable properties and legal agreements as well. ठीक है, so this is important. कौन लगाता है? State government is the one who will be benefit from this.
However, कौन करेगा कलेक्ट? यूनियन विल बी द वन हु विल बी कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. ठीक है. So again, this is also quite important, and you need to remember the name of the act, that is Indian Stamps Act of 1899. तो 1899 का स्टैम्प्स एक्ट. तो आपने इसको लर्न कैसे करेंगे ईयर को? देखो, स्टैम्प अगर आपने देखा होगा तो ऐसे राउंड सा होता है ना, और इसमें कुछ भी लिखा रहेगा. ठीक है. तो ऐसे 2 राउंड से हमारा 8 बन जाता है, एंड यहाँ पे एक राउंड ऐसे और एक राउंड ऐसे है. ये ऐसे थोड़ा सा फैल गया सपोज कोई हमारा स्टैम्प, तो ऐसे बन जाएगा. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर 1899. ठीक है. सो वी आर डन विद दिस topic for now. So thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.